Can you see me? Good evening, everyone. Hello. I hope you guys Good are doing evening. really well. Hello, sir. So yesterday we had an amazing session with Ravindra Tripathi, sir. And today we are here with the day 2 of our webinar. Those who have joined us today, I would like to tell them that Samarth Theatre Group is a Delhi-based drama school. Here at Samarth, we believe in holistic development of actors is must. Hence, the training should be multidimensional, and therefore we are here with the season 1 of our webinar with eminent personalities who will talk on diverse topics. So today, I am Kit Kumar on behalf of Samarth Theatre Group, welcome you all in the first season of our webinar. Moving on, I would like to welcome our speaker of the day, Mr. Pavan Kumar Srivastav. Hello, sir. Thank you so He's much. He's a filmmaker, writer, blogger, and activist. He has directed films like Life of an Outcast, a feature film streaming on Netflix and admired by masses. He is the director of Bihar's first independent crowdfunded film, Naya Pata, where he has shown the agony of migrants and their struggle for identity. It was the first time in India that a film from Bihar is exclusively being released by PVR Director's Cut. He writes at his blogs titled as E-Bihar and Patna Ki Sadko Se. He has been selected among 13 young innovators of 2012 from Bihar to chart their own road of success by telegraph. He has conducted workshops on filmmaking and crowdfunding in various parts of the country. He has also directed Kumbh, the Other Story, a feature-length documentary, I Am Draupadi, a feature film, which are going to be released soon. We welcome you, sir. Thank you so much, Ankit. Thank you. So before sir start with his talk, I would like to request all of you to follow some instructions. First, please keep your mic muted during the presentation. I would like to keep your cameras on so that we can have a good interactive session. You can ask your questions by typing it in the chat box, but try to avoid it during the presentation as we'll have a Q&A session at the end as well. We are great in numbers, so in order to avoid chaos, those questions will be consolidated and asked by me. But at the end, if you feel that your question haven't been answered or asked by me, then you have an option of raising hand in the application. So do click it. Last, but the most important one, we all are connected through a digital medium whose controls are beyond us. So in case of any network error or technical issue, keep a check on your WhatsApp group. If there will be a need of making new meeting link, we'll provide you there. Now, I would like to request our speaker, sir, to take the digital stage. Thank you, Ankit. Thank you. Sir, you are on spotlight. Everyone can see you now. You can start. Hi, everyone. Hi. So, as Ankit told, my name is Pavan, and as of now, I'm in Mumbai. So, I'm talking to you all from Mumbai, and you all from Delhi. So, most of us. And सब लोग थिएटर से जुड़े हुए हैं, मैक्सिमम जो लोग हैं. Yes, sir. तो जैसा कि सब्जेक्ट मालूम होगा, आप संदीप ने बताया होगा या आपको कम्युनिकेट किया गया होगा कि हम आज मतलब मैं कोशिश करूंगा बात करने की कि एक्टर और कैरेक्टर का बिल्डअप कैसे करते हैं सिनेमा में या थिएटर में. तो मैं एक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको बता पाऊँ कुछ, ताकि आप लोग ज़्यादा जानते होंगे क्योंकि आप लोग एक्टिंग में हैं. तो फिर भी लेकिन मैं अपने अनुभव, जो एक्टर के साथ काम करने का जो अनुभव होता है, या फिर मैं अपने एक्टर से क्या उम्मीद करता हूँ, वो बताने की कोशिश करूंगा. तो हम लोग कितने लोग हैं यहाँ पे अभी? Sir, right now we are 65 and we are expecting 10 to 15 more. Okay. चलिए ये सब बातें वर्चुअल हैं, ठीक है. तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, मतलब
उससे बात करते हैं कि एक्टर होता क्या है ना, हु इज एक्टिंग एक्टर। जो है वो आई नो हिम। हेलो, कोई कुछ बोल रहे थे क्या? I think she was saying, I know him. You are quite popular. थैंक यू सो मच। सो हम आज बात करेंगे कि मतलब अभी शुरुआत करते हैं किसी एक्टर कौन होता है, हु इज एक्टर। क्योंकि अगर हम एक्टिंग करते हैं तो सबसे एक्टर कौन है? तो मुझे जैसे लगता है कि शेक्सपियर ने जैसे बोला है कि ये पूरी जो दुनिया है ना वो ऑलरेडी एक रंगमंच है और हम सब एक्टिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और पपेट की तरह हम लोग एक्टिंग करते हैं। तो एक टर्म पे देखेंगे आप अगर बहुत लार्जर पर्सपेक्टिव में, तो हम सब एक्टिंग कर रहे हैं अपने अपने कैरेक्टर की। जैसे मैं पवन हूँ, तो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ऑल्दो मैं अपनी ही कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहा हूँ, लेकिन ये भी एक तरह का एक्टिंग ही है। तो हर आदमी अपने तरीके से एक्टिंग कर रहा है, और ये भी कहा जाता है कि हर आदमी एक रोल जरूर कर सकता है। हर इंसान जो वो खुद है वो जरूर प्ले कर सकता है। लेकिन जब हम एक टेक्निकली जब एक्टर की बात करते हैं कि एक्टर कौन है, तो मुझे लगता है कि अपने आप को पोर्ट्रे करना या जो हम हैं उसको रिप्रेजेंट करना इज नॉट एक्टिंग। वो तो हम मतलब बहुत ही रियल तरीके से बात कर रहे होते हैं। एक्टिंग तब सामने आती है जब हम किसी और कैरेक्टर को प्ले करें, जब किसी और कैरेक्टर के लाइफ को जिए या उसको पोर्ट्रे करें, उसको कम्युनिकेट करें। जैसे जैसे मैं पवन हूँ और मुझे कहा जाए, मैं फिल्म में करूँ, मुझे कहा जाए तुम एक MBA ग्रेजुएट या कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की तरह प्ले करो, तो उस समय शायद जब मैं उसके कैरेक्टर में जाके प्ले करूंगा लाइक कॉर्पोरेट की तरह, तो वो शायद एक्टिंग होगी, क्योंकि मुझे उस समय अपने पवन को डिसोसिएट करना होगा और आई हैव टू गो इनटू द शूज ऑफ दैट मैन, दैट कैरेक्टर। तो ये मतलब मुझे लगता है मोटा मोटी ये एक्टिंग यही है कि आप जब दूसरे के कैरेक्टर को प्ले करते हैं जो आपने नहीं जिया है, और उसको पोर्ट्रे करने का जब आपको मौका मिलता है, तो टेक्निकली वही एक्टिंग है। वो चाहे किसी भी मीडियम में हो, थिएटर में हो या सिनेमा में हो या किसी भी तरह के परफॉर्मिंग आर्ट्स में हो। तो ये जो रेफरेंस ड्रॉ करते हैं, मतलब दूसरे के कैरेक्टर में जाके जो प्ले करना होता है, उसका जो प्रोसेस है उसी पे हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने आप को डी एसोसिएट करके किसी और कैरेक्टर के को प्ले करना है, हमें पोर्ट्रे करना है, हमें कुछ और बनना है थोड़े समय के लिए। तो वो उसका प्रोसेस कैसे हो सकता है, कैसे बेहतर प्रोसेस हो सकता है, तो बेसिक तो ऑब्वियसली उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है। मतलब मुझे लगता है कि एक्टर के लिए ट्रेनिंग की जरूरत तो है, और बहुत सारे और ट्रेनिंग के लेकिन माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। आप फिल्म स्कूल हो सकता है, थिएटर, आप डायरेक्ट प्रैक्टिसिंग थिएटर प्रैक्टिस भी करके आप सीख सकते हैं, वो भी एक ट्रेनिंग का मीडियम हो सकता है। या फिर फिल्म या फिर ड्रामा स्कूल में जाके आप सीख सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग की जरूरत है। आप वो खुद ट्रेनिंग लें या फिर किसी फिल्म स्कूल में जाके या ड्रामा स्कूल में जाके या किसी थिएटर ग्रुप को ज्वाइन करके लिए, वो आपके चुनाव हो सकता है। या आपके पास जो जो अवसर उपलब्ध है, सबके पास अवसर भी नहीं होता है सेम तरह का कि हर आदमी NSD में जाए या हर आदमी थिएटर ग्रुप ज्वाइन करे, हर आदमी फिल्म स्कूल, लेकिन हर आदमी को ट्रेनिंग की जरूरत है। ये सत्य है कि मतलब ट्रेनिंग तो चाहिए अगर आपको एक्टिंग करनी है तो। अब ट्रेनिंग कैसे लेते हैं आप, ये आप पे डिपेंड कर सकता है, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है। तो मुझे लगता है कि एक्टर जब मतलब एज एन एक्टर जब हम दूसरे का कैरेक्टर प्ले करते हैं, तो सबसे पहले हम उस कैरेक्टर के बारे में जानना होता है कि कैरेक्टर जिसको प्ले कर रहे हैं वो कौन है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि वो कौन है, वो क्या करता है। मतलब कौन है मतलब उसमें क्या क्या चीज़ आएंगी कि वो क्या करता है, कहाँ से बिलोंग करता है, और दिखता कैसा है, उसका आउटलुक कैसा है। और उसके बाद बाकी जो क्राफ्ट हैं, उसका बॉडी, उसका डिक्शन, और जो भी मतलब जो जो काम करता है अपनी रियल लाइफ में जो प्ले करता है, वो बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। सबसे पहले हु इज मतलब हु आई एम प्लेइंग, ये जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे एग्जांपल अगर हम लेके प्ले मतलब बात करें अगर, तो जैसे मान लीजिए आप लोगों ने अभी रिसेंट कोई प्ले किया होगा ना। अब कोई बता सकता है कि लास्ट किसी ने कोई प्ले किया हो, जो भी सुन रहे हैं आप लोग, स्टेज पे या नुक्कड़ में या सिनेमा में कोई प्ले किया हो आपने कोई, या फिर एक्ट किया हो।
I guess Dhruvi wants to answer. Yeah, please. Sir, Singholi files. सर आप Singrauli files, sir. सर म्यूट हैं आप. सिंगरौली फाइल्स आपने उसमें कौन सा कैरेक्टर प्ले किया था आपने? सर देयर वाज अ ट्राइबल वुमन रूपा. ओके, तो आप यानी कि एक ट्राइबल वुमन का प्ले कर रही हो, तो मे बी छत्तीसगढ़ या झारखंड के किसी कैरेक्टर को प्ले कर रही होंगी ना? सर एमपी का जो सिंगरौली एरिया है. सिंगरौली का। तो आप बताएंगे कि आपने क्या किया, कैसे प्रिपेयर किया था उसको, मतलब उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए आपने क्या किया, क्या प्रिपरेशन की? शायद मतलब बाकी लोगों को भी मालूम चलेगा कि कैसे करते हैं, मतलब फिर मैं बात करूंगा उस पर कि कैसे प्रिपेयर करते हैं, पूरा सर प्रोसेस क्या है? पहले एक सिंगरौली एरिया को पढ़ा था कि व्हाट इज दैट एरिया अबाउट, और जो हम उसकी थीम जिस पर काम कर रहे हैं वो थीम में क्या रियल इश्यूज है वहां पर जिन पे हम बात करने जा रहे हैं. उसके बाद फिर जब कैरेक्टर की बात आई तो कैरेक्टर में वहां पर जिस तरीके की रूपा कैरेक्टर था, जो विमेन थी वो एक इकलौती नहीं थी, ऐसे बहुत से लोग होते हैं वहां पर रूपा वाज जस्ट सिग्निफाइंग द ऑल ऑफ दोस. उसके बाद वहां पर क्या उनका आउटर कैरेक्टर होता है, वहां के लोग किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वो ट्राइबल पीपल हैं. उनका एक कम्युनिटी जो होती है किस तरीके के आउटर्स में जाती है, वो उनके आउटर क्या होते हैं, उनके कुछ कुछ साइंस हमने सिंबल्स हमने लिए थे, कैरी किए थे. उसके बाद फिर से व्हाट इज देयर लैंग्वेज, लैंग्वेज पे बहुत काम किया था, क्योंकि हमने वहां पर थोड़ा बुंदेलखंडी और भोजपुरी टच आ जाता है सिंगरौली साइड पे, तो वो हमने डिक्शन पे पूरा काम किया, जैसे भी आपने बोला भी डिक्शन. उसके बाद फिर बिलोंगिंग तो हो ही गई कि वो किस जगह की है, किस आसपास उसका कितना डेवलप्ड एरिया है और डेवलप्ड है भी या नहीं. और उसके बाद फिर वो किस तरीके की लेडी है जिसको हम पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी वल्नरेबल है, किन चीजों में वो कहाँ कहाँ लैक करते हैं, किन चीजों को कहाँ कहाँ स्ट्रॉन्ग है, उस चीज को पूरा स्टडी करना, मतलब उसको सोचना जिस हिसाब से स्क्रिप्ट हमको मेंशन करती है या बताती है, उस हिसाब से उसकी साइकी डेवलप करना. ठीक है, थैंक यू सो मच. तो जैसे आपने सुना कि उन्होंने बताया कि जब रूपा का कैरेक्टर प्ले करना था तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, ज्योग्राफी को समझा कि जहाँ का वो कैरेक्टर प्ले कर रही है. अगर मध्य प्रदेश का कैरेक्टर, ट्राइबल बेल्ट का कैरेक्टर, तो वहाँ किसी चीज, क्योंकि वो दिल्ली में रहती हैं, शायद आप दिल्ली में रहती हैं ना? जी सर. हाँ, तो दिल्ली में रहते हुए और एमपी का कोई कैरेक्टर प्ले करना हो तो सबसे मतलब उसके लिए आपको तैयारी करनी होगी कि एमपी का आदमी कैसे बिहेव करता है, उसका लैंग्वेज क्या होगा और फेशियल एक्सप्रेशन क्या होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी बात को कैसे रिएक्ट करता है वहाँ का आदमी, ट्राइबल आदमी कैसे रिएक्ट करता है, उसके लैंग्वेज को समझना. तो मतलब बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपको स्क्रिप्ट मिलती है किसी कैरेक्टर का, तो उसका एक बैकड्रॉप, छोटा सा बैकड्रॉप होता है और डायलॉग्स होते हैं. लेकिन जब आप तैयारी कर रहे हैं कैरेक्टर की, तो स्क्रिप्ट ही काफ़ी नहीं होता है. तो जो डायरेक्टर आपको स्क्रिप्ट देता है वो केवल काफ़ी इनफ नहीं होता है ज़्यादातर समय. तो या तो आपको खुद तैयारी करनी होती है उसके बारे में, उस कैरेक्टर को कैसे आप इंटरलाइज करेंगे. इंटरनलाइज करना भी होता है ना, कि टर्म होता है कि इंटरनलाइज करना, उसको खुद अपने अंदर ढालना कि इस कैरेक्टर को कैसे समझेंगे आप. उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं या उसके रिलेटेड कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं. तो मुझे लगता है कि तैयारी करना बहुत जरूरी है, और किसी भी एक्टर को ना पढ़ना बहुत चाहिए. क्योंकि अगर आपको अचानक से कोई कैरेक्टर प्ले करना हो और 10 दिन टाइम हो और आप कुछ नहीं जानते हैं उसके बारे में, तो ज़्यादातर समय बहुत मुश्किल हो जाता है 10 दिन में प्रिपेयर करना. तो उसके लिए अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब एक्टिंग फील्ड में है, तो आपको रेगुलर पढ़ते रहना चाहिए. ये नहीं कि कोई कैरेक्टर मिलेगा तभी मैं पढ़ूंगी या पढ़ूंगा. तो एक रेगुलर प्रोसेस होना चाहिए पढ़ाई करने का. आपको अलग अलग चीज़ों, मतलब साहित्य लिटरेचर पढ़िए अलग अलग जगह का, न्यूज़ पढ़ना बहुत जरूरी है, करंट अफेयर्स की जानकारी होनी चाहिए आपको, और फेसेस भी देखिए, मतलब फेसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. आप गूगल से भी फेसेस देख सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा ट्रेवल करेंगे ना, ट्रेवलिंग भी एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अलग अलग जगह ट्रेवल करें और ऑब्जर्व करें कि लोग कैसे बिहेव करते हैं रियल लाइफ में. जैसे एग्जांपल लीजिए मेट्रो, आप मैं दिल्ली मेट्रो का एग्जांपल लूँ. अगर आप ब्लू लाइन में बैठे हैं, येलो लाइन में बैठे हैं और रेड लाइन में बैठे हैं, तो आप देखेंगे कि ब्लू लाइन में जो लोग जैसे बैठते हैं ना, एक्सप्रेशन वो स्लाइटली डिफरेंट होता है ग्रीन लाइन या फिर येलो लाइन के लोगों से. आपने महसूस किया कभी
अगर ट्रेन आप मतलब जनकपुरी जो कोई मेट्रो जा रही हो और गुड़गांव जा रही हो, तो आप देखेंगे कि लोग जो है वहाँ बैठे हुए हैं, उनका एक्सप्रेशन अलग होता है, क्योंकि अलग अलग ज्योग्राफी से बिलोंग करते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन का तरीका हो सकता है, एक मतलब एक माध्यम हो सकता है कि जहाँ भी रहिए आप अलर्ट रहिए, देखिए कि लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं। जैसे आप जब आप सदर बाजार जाइए और कनॉट प्लेस जाइए, तो दोनों जगह की बॉडी लैंग्वेज अलग है लोगों का। आप ये भी मतलब रियल टाइम आप बहुत ही मतलब आसान तरीका है स्टडी करने का, कि आप जब भी जहाँ भी रहिए आप अलर्ट रहिए, ऑब्जर्व कीजिए कि लोग कैसे बैठे हैं, मतलब पाँव पे पाँव चढ़ा के बैठे हैं, हाथ का गेस्चर क्या है, फोन कैसे अटेंड करते हैं, मतलब कैसे चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, उतरते कैसे हैं मेट्रो से, लाइन में कैसे खड़े होते हैं। तो ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल। ऐसे ही कोई भी कैरेक्टर मिलता है आपको, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि एक ट्राइबल कैसे बिहेव करता है और कैसे रिएक्ट करता है चीज़ों को। तो या तो आप पहले से पढ़े हुए हो, मतलब जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी आसानी होगी, आप उतना प्रिपेयर्ड रहेंगे, और तब कोई कैरेक्टर मिलेगा तो बहुत ज़्यादा आपको काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से आप जानते होंगे उसके बारे में, उस एरिया के बारे में। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एक्टर के लिए। जहां भी रहिए ऑब्जर्व करते रहिए कि लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं। दूसरा, ट्रेवलिंग, मतलब ट्रेवल कीजिए जितना पॉसिबल हो, मतलब जिस शहर में रहते हैं उस शहर को कम से कम समझिए, या फिर कभी भी जाने का मौका मिलता है तो अलग अलग पॉकेट्स में जाइए, लोगों को देखिए लोग कैसे बिहेव करते हैं। लिटरेचर पढ़िए, गाने सुनिए, मतलब गाने सुनना भी बहुत जरूरी है। कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि आप कैरेक्टर के बारे में पता नहीं चल रहा है कि कैरेक्टर बिहेव कैसे करेगा। बहुत बार क्या होता है कि कोई गाना सुन के या कोई गजल सुन के आप, या कुछ भी, या पोएट्री पढ़ के, पोएट्री भी बहुत काम करता है आपको क्राफ्ट बिल्डअप करने में। बहुत बार ऐसा होता है कि पोएट्री से आप अपना रेफरेंस ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि कैरेक्टर कैसे बिहेव करेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक बार इरफान खान साहब थे, तो सात कुन माफ आप सबने देखी होगी। तो इरफान खान को सात कुन माफ की एक्टिंग करना था। विशाल भारद्वाज ने उनको बहुत कुछ नहीं बताया था उस कैरेक्टर के बारे में, जो नवाब का कैरेक्टर है ना, सात कुन माफ में जो इरफान सर ने प्ले किया है। तो उनको बहुत ज़्यादा पता नहीं था कि कैसे हम उस कैरेक्टर को कैसे प्ले करें, क्योंकि वो एट द सेम टाइम बहुत ही शायराना भी है और एट द सेम टाइम बहुत पैट्रियार्कल भी है। वो बहुत ज़्यादा पैट्रियार्की से भरा हुआ है, बहुत क्रूएल भी है वो। तो इरफान सर एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उनको सुबह मुदगल की एक गज़ल है, मतलब, तो उस गज़ल को जब सुना उन्होंने, तो उन्होंने उनको लगा कि नहीं, ये कैरेक्टर जो है इस गज़ल से रिलेट करता है। तो वहां से उनकी तैयारी, मतलब पूरी तैयारी उन्होंने उस गजल के इर्द गिर्द उस कैरेक्टर को बिल्डअप किया था। तो आपको पता नहीं है कि रेफरेंस कहाँ से मिल सकता है। हो सकता है किसी पोइट्री से आपको आपके कैरेक्टर का रेफरेंस मिल जाए, या हो सकता है किसी लिटरेचर से मिल जाए, या हो सकता है कोई रियल सिचुएशन से मिल जाए आपने जो देखा हो। तो पढ़ाई करना, ट्रेवल करना, पोइट्री, म्यूजिक का भी बहुत बड़ा रोल है। म्यूजिक से रिदम भी आता है, आप म्यूजिक से एक रिदम भी डेवलप कर सकते हैं कि एक एक्टिंग में रिदम तो है ही है। और सुनिए बहुत सारा चीज, मतलब जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ज़्यादा डिक्शन आपका इंप्रूव होगा। और दूसरा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सप्रेशंस पे बहुत काम करना जरूरी होता है एक्टर को, मतलब अलग अलग तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं। जैसे अभी जैसे हम इंडिया में बात करेंगे तो हमारे यहाँ क्या नाट्य शास्त्र है, एक बोलते हैं कि भाई नाट्य शास्त्र समझो, अलग अलग तरीके जो भरत मुनि ने जो लिखा है और बहुत पुराना है उसको लोग फॉलो करते हैं। लेकिन नाट्य शास्त्र के साथ साथ आप देखिए समय बदल रहा है ना। एक कैरेक्टर जो एक्टर होता है अपने समय को भी डॉक्यूमेंट करता है। आजकल के जो कैरेक्टर हैं वो बहुत, हम पोस्ट मॉडर्न समय में रह रहे हैं। अभी की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, सोचने का जो तरीका है वो पहले के तरीके से बहुत अलग है। अब हम बहुत फास्ट हैं, माइंड बहुत रैशनल है हमारा, और चीज़ें बहुत लेयर्स में सोचते हैं हम, अब लीनियर नहीं है। तो आप देखेंगे आजकल की फिल्मों का जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर नहीं होता है। वो कभी फ्लैशबैक में जाता है, कभी प्रेजेंट में आ गया, फिर फ्लैशबैक में चला गया, क्योंकि हम ऐसे ही सोच रहे हैं। तो जो मॉडर्न माइंड है उसको भी इंटरप्रेट करना कैरेक्टर के लिए बहुत जरूरी है, मतलब एक्टर को समझना पड़ेगा। तो आप नाट्य शास्त्र के साथ साथ आपको जो यूरोपियन क्राफ्ट है उसको भी पढ़िए, क्योंकि नाट्य शास्त्र जैसे अब बहुत सारी चीजें ना बदल गई हैं एक्टिंग में। तो ड्रामा एलिमेंट बहुत कम हो गया है। पहले क्या होता था, हर चीज को हम बहुत लार्जर देन लाइफ करके दिखाते थे। अब क्या है कि नहीं, अब न्यू रियलिज्म है, जो इटालियन न्यू रियलिज्म जिसको बोलते हैं हम, न्यू रियलिस्टिक अप्रोच है कि एक्टर को एकदम रियल होना चाहिए और रियल सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है
तो वो क्राफ्ट आपको यूरोपियन क्राफ्ट करके मिलेगा। नाट्य शास्त्र से शायद वो आप न मिले आपको, लेकिन आप जब बाकी जगहों के क्राफ्ट पढ़ेंगे तो इसीलिए मुझे लगता है कि इंटरनेशनल एक्सपोजर जो वो भी बहुत जरूरी है। तो अभी जो इंडिया में हम सिनेमा में जो एक्टिंग कर रहे हैं आजकल, जो नई पीढ़ी के जो एक्टर हैं, आप देखेंगे बहुत रियलिस्टिक हैं वो, और मिनिमल भी हैं। मतलब मिनिमल कहने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा वो कुछ नहीं करते हैं एक्सप्रेशन को कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे स्माइल करना है तो पहले स्माइल बहुत बड़ी होती थी, अब एक्टर बहुत छोटा सा स्माइल करता है और वो कम्युनिकेट हो जाता है, क्योंकि एक्सप्रेशन बदल चुका है। तो नए एक्सप्रेशन भी सीखने होंगे, नए तरीके का। जैसे जर्मन एक्टिंग सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यूज करते हैं अक्सर कि, तो जैसे आप देखिए, याद कीजिए राजेश खन्ना की एक्टिंग और अभी नवाजुद्दीन की एक्टिंग कितना डिफरेंट है। मतलब आई हेट टीयर्स जब राजेश खन्ना बोलते हैं तो कितना सारा ड्रामा होता है उसमें, लेकिन शायद वो उस समय की जरूरत थी, उस समय हम ऐसे ही बिहेव करते थे। लेकिन अब हम बहुत सटल हो गए हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम बहुत सटल तरीके से बिहेव करते हैं या रिएक्ट करते हैं। तो एक टाइम को भी समझना होगा हमें कि कैसे समय बदल रहा है, और एक्टर का काम क्या है कि अपने समय को भी डॉक्यूमेंट करना। जो आज का जो एक्टर है, जैसे आज 2021 का जो कैरेक्टर है, उसको प्ले करने के लिए आपको नए क्राफ्ट सीखने होंगे। हो सकता है कि नाट्य शास्त्र आपको उतना मदद ना करे जितना कि आपको एक यूरोपियन क्राफ्ट मदद कर सकता है, या फिर मिनिमलिस्ट जो अप्रोच है एक्टिंग का वो मदद कर सकता है। तो बहुत सारे अप्रोच हैं एक्टिंग को लेके, तो उन सारे अप्रोच को आपको मतलब स्टडी करना होगा। और दूसरा एक और लोग बोलते हैं, बहुत कॉमन टर्म है कि मेथड एक्टिंग। कई बार होता है कि आप जो कैरेक्टर प्ले करते हैं उसको रियल लिविंग एक्सपीरियंस जो बोलते हैं, तो लेकिन हर बार ये संभव नहीं होता है कि आप लिव्ड एक्सपीरियंस और उस कैरेक्टर के एक्सपीरियंस को लिव करें, जी पाए। बोलते हैं ना मेथड एक्टिंग, बहुत लोग बोलते हैं करना भी चाहिए और नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि एज एन ह्यूमन बीइंग आपको बहुत ज्यादा प्रभावित भी करती है बहुत बार ये मेथड एक्टिंग, क्योंकि आपको एकदम पूरी तरह से उस कैरेक्टर को जीने लगते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप वर्कशॉप में हैं, आप थिएटर कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनको आपको छोड़ के आना होता है वहीं पे। आप घर लेके नहीं आ सकते हैं उन कैरेक्टर को। आप घर लेके आएंगे तो घर पे भी वैसे ही बिहेव करेंगे, तो हर कैरेक्टर को आप मेथड एक्टिंग के थ्रू नहीं प्ले कर सकते हैं। ये बहुत मतलब जैसे रमन राघव में आप एग्जांपल लो, तो नवाजुद्दीन जो भी एक्टिंग प्ले करते हैं उसका अगर मेथड एक्टिंग वो रियल लाइफ में करने लगे तो पॉसिबल नहीं होगा उनके लिए। रमन राघव को मेथड एक्टिंग के थ्रू नहीं प्ले किया जा सकता है, उसको इंटरनलाइज कर सकते हैं वो। और उसके जो इंटरनलाइज करने का मतलब क्या है कि जो उसका कन्विक्शन है किसी भी कैरेक्टर का, जैसे आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, जैसे हम एग्जांपल लें, अभी जो रूपा ने एग्जांपल लिया था, सॉरी रूपा कैरेक्टर का नाम था, सॉरी रूपा का जो कैरेक्टर प्ले किया था उन्होंने ट्राइबल वुमेन का, तो जब हम रूपा को इंटरनलाइज करेंगे तो हमें उसके कन्विक्शन को भी पता होना चाहिए। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे वो पोर्ट्रे नहीं होगा। आपके हो सकता है कि आप ट्राइबल राइट्स पे बिलीव नहीं करते हो पर्सनली, लेकिन जब आप उस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं तो आपको ट्राइबल राइट पे बिलीव करना होगा, तभी आपके वो चेहरे पे दिखेगा। जैसे कोई एक्ट कैरेक्टर है, जैसे शाहिद का एग्जाम्पल लें, शाहिद जो फिल्म आई थी राजकुमार राव की, और राजकुमार राव सिस्टम इन सोशल जस्टिस के खिलाफ लड़ने में बिलीव नहीं करते, तो शाहिद के चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस आता है ना वो नहीं आता राजकुमार राव जब प्ले कर रहे होते। तो कई बार क्या होता है कि जो कैरेक्टर का जो बिलीव सिस्टम है उसमें भी आपको बिलीव करना होता है, चाहे वो आप फॉर द टाइम बीइंग ही करें, आपको उसके बिलीफ सिस्टम पे विश्वास करना होता है, तभी आपके वो चेहरे पे दिखेगा। अदरवाइज बहुत मतलब वो दिखेगा, फेक दिखेगा कि कैरेक्टर और आपके में एक डिस्टेंस है, वो साफ मतलब दिख जाएगा वो। तो कैमरा या फिर थिएटर मीडियम दोनों इतने ज्यादा मतलब उसमें दिखता है, पता चल जाता है कि कैरेक्टर क्या, मतलब कितनी दूरी से, मतलब कैरेक्टर और एक्टर में कितना दूरी है। तो दूरी जितनी कम होगी उतना ज्यादा कम्युनिकेट हो पाएगा, क्योंकि पूरा जो मकसद क्या है उस एक्टर को और उस कैरेक्टर को कम्युनिकेट करना है। जन एक्टर आपका काम यही है, उसकी बात कम्युनिकेट करना, तो बातों पे विश्वास करना भी बहुत जरूरी है। तो आप उसके पूरे बिलीफ सिस्टम को समझिए कि जो कैरेक्टर है उसका विश्वास क्या है। अगर वो विश्वास करता है कि कोई चीज ऐसे होनी चाहिए, तो आपको भी विश्वास करना होगा फॉर द टाइम में कि चीज ऐसे ही होनी चाहिए, तभी आप उसको कम्युनिकेट कर पाएंगे। अब जैसे आप सब लोग थिएटर से जुड़े हैं, तो मैं थोड़ा सिनेमा और थिएटर के बारे में बात करता हूँ कि कैसे अलग होता है ना।
बेसिकली हम थिएटर प्ले करते हैं तो आपने सुना होगा, अक्सर हम बोलते हैं फोर्थ वॉल की बात करते हैं ना, कि मतलब फोर्थ वॉल की हम बात करते हैं। तो जब थिएटर प्ले करते हैं तो फोर्थ वॉल क्या है? आपका ऑडियंस है थिएटर में, और सिनेमा में फोर्थ वॉल कैमरा है। ये बेसिक डिफरेंस है कि थिएटर जब कर रहे होते हैं तो आपका जो फोर्थ वॉल है, मतलब बाकी 3 वॉल तो है ही है, लेफ्ट राइट और पीछे, ये सामने आपके ऑडियंस है, और सिनेमा में फोर्थ वॉल कैमरा होता है। लेकिन कैमरे का बिहेव करने का तरीका और ऑडियंस का बिहेव करने का तरीका बहुत अलग होता है। जब आंखें, मतलब आंखों से हम चीजों को देखते हैं, तो वहां, तब जब थिएटर कर रहे होते हैं आप ऑडियंस के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, पूरा प्रोसेस दिख रहा है। जैसे आप, जब सब्जी, जैसे एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हम सब्जी बना रहे हैं ना, तो हम आलू काट रहे हैं, फिर गैस पे स्टोव पे बर्तन चढ़ा रहे हैं, तेल डालते हैं, फिर प्याज भूनते हैं, मतलब पूरा जो प्रोसेस है। तो थिएटर में क्या होता है कि पूरा प्रोसेस दिखता है, और सिनेमा में क्या होता है कि एक फाइनल प्रोडक्ट जाता है ऑडियंस के पास, वो सब्जी जाएगी फाइनल। लेकिन थिएटर में क्या होती है, आप करते हुए दिख रहे हो आप, तो चैलेंजेस बहुत अलग हैं दोनों के। आप रीटेक की संभावना थिएटर में नहीं होती है, यू कांट डू रीटेक्स, और आप डायरेक्ट आप ऑडियंस से इंटरेक्ट कर रहे हो। तो जब थिएटर कर रहे हैं तो उस समय आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ऑडियंस भी आपको एज ए ह्यूमन बीइंग ले रहा है। आप, मतलब उसको पता है कि सामने आदमी है, आदमी प्ले कर रहा है। और सिनेमा में क्या होता है ना, कि कई बार सिनेमा का जो जादू होता है, हम देख रहे होते हैं तो ये भूल जाते हैं कि वो एक इंसान भी है, हम उसको कैरेक्टर की तरह लेने लगते हैं प्रॉपर। लेकिन थिएटर में, मतलब ऑडियंस को हमेशा एहसास होता है कि एक आदमी प्ले कर रहा है, या एक लड़की प्ले कर रही है, एक लड़का प्ले कर रहा है इसको, तो उनकी उम्मीदें ज़्यादा हो जाती हैं आपसे। अब इसलिए देखे होंगे, जो थिएटर के बाद जो Q&A सेशन होता है और सिनेमा के बाद जो Q&A सेशन होता है, उसमें बहुत डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और दूसरी बात की, थिएटर जो होता है ना, जनरली थिएटर मतलब सोशल इश्यूज पे ज़्यादा होते हैं ज़्यादातर, मतलब प्रो पीपल ज़्यादा होता है। तो थिएटर जब करते हैं तो उसमें पॉलिटिकल समझ, मुझे लगता है कि एक थिएटर के एक्टर को ज़्यादा होनी चाहिए। कि जैसे आप कोई नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, या कोई प्ले ही कर रहे हैं, स्टेज ही कर रहे हैं आप, और किसी इशू बेस्ड है, तो सिनेमा से ज़्यादा, सिनेमा अगर कर रहे हैं उसी चीज़ को लेकर, सिनेमा पे काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जब एक थिएटर के एक्टर को ज़्यादा जानकारी की जरूरत होती है बनिस्बत एक सिनेमा के एक्टर को, क्योंकि आप उसको लिविंग एक्सपीरियंस है, वो प्रॉपर एक स्टेज पे ऑडियंस देख रही है, और बहुत सारे ऑडियंस के सवाल भी हो सकते हैं, क्योंकि ऑडियंस की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। उसको लगता है कि आप, वो भूल जाता है कि आप केवल एक एक्टर ही हैं, या आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। बहुत बार उसको लगता है कि आप उस मुद्दे से जुड़े हुए भी हैं, और वो आपसे उम्मीद करने लगता है कि आपका एक ओपिनियन भी होगा उस मुद्दे को लेके। तो ये, मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप थिएटर का, जानकारी आपको होनी चाहिए सिनेमा के, मतलब सिनेमा से ज़्यादा। और सिनेमा की बात करें तो, मतलब सबने बताया हो आपको कि थिएटर जब करते हैं तो हर चीज़ बहुत लाउड होती है, थोड़ा सा लाउड रखना पड़ता है हमें चीज़ों को, क्योंकि ऑडियंस होती है सामने, आखिरी पंक्ति तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए, कोई एम्पलीफायर नहीं है वहाँ पे। सिनेमा में क्या है कि सिनेमा प्रोसेस्ड है, और थिएटर क्या अनप्रोसेस्ड चीज़ है ना, एक प्रोसेस्ड फूड होता है, एक अनप्रोसेस्ड फूड होता है। तो थिएटर क्या है कि अनप्रोसेस्ड है, उससे आपके वॉइस में कोई मॉड्यूलेशन, मतलब अलग से कोई, मतलब वॉल्यूम, मतलब सिस्टम नहीं है कि एम्पलीफाई कर दे आपकी आवाज़ को, या आपकी कलर करेक्शन भी नहीं होता है उसमें, या क्लोजअप्स, कैमरा में क्या होता है, क्लोजअप होता है, वाइड एंगल होते हैं। लेकिन आपके स्टेज में क्या है कि प्रॉपर एंगल है, और उसी में प्ले करना है। तो जैसे कोई कैरेक्टर, अब एक्टर को पता है कि मेरा क्लोजअप जा रहा है सिनेमा में, तो वो एक्सप्रेशन क्या देगा, बहुत कम देगा, क्योंकि उसको पता है कि ऑलरेडी मेरा क्लोजअप ही दिख रहा है, इतना ही दिख रहा है। लेकिन जब थिएटर जब प्ले कर रहे हैं तो आपकी पूरी बॉडी दिख रही है, लेकिन दिखाना आपको चेहरे का एक्सप्रेशन है, तो ऑब्वियसली आपको लाउड रखना पड़ेगा। स्केल 1 to 10 पे बात करें तो आपको 8 या 9 के स्केल पे रखना पड़ेगा अपने एक्सप्रेशन को। सिनेमा में आप, क्योंकि आपको ऑलरेडी क्लोजअप जा रहा है, तो 2 या बहुत कम मिनिमम भी एक्सप्रेशन देंगे तो कम्युनिकेट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका केवल फेस दिख रहा है उस सिनेमा में। जैसे अभी हम जूम पे बात कर रहे थे, कितना ही पोर्शन दिख रहा है मेरा, क्योंकि ये कैमरा है। लेकिन आप मुझे सामने से देख रहे होते, बैठ के बोल रहा होता, तो मेरा पैर भी दिख रहा होता आपको, मेरी हाथें भी दिख रही होती, तो उसमें मुझे, मतलब और ज़्यादा एक्सप्रेशन दे के बात करना होता, जोर से बात करना होता कि मेरी आवाज़ दूर तक पहुंच पाए। आप यहाँ पे तो वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं ना लैपटॉप का, अपने कम ज़्यादा कर सकते हैं, हेडफोन लगा के बहुत क्लियर सुन सकते हैं। तो सिनेमा भी ऐसा ही होता है कि प्रोसेस हो जाती है चीज़ें।
आपका इमेज भी प्रोसेस हो रहा है, आपकी वॉइस भी प्रोसेस हो रही है, और तो थिएटर करते और ये बेसिक डिफरेंस है। मतलब वन लाइन में बोले कि एक हर चीज मिनिमम करना होता है। कैमरा बहुत सेंसिटिव होता है, आप पलक भी झपकाते हैं तो कैमरा उसको कैप्चर कर लेता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि आप थिएटर कर रहे हैं तो शायद पलक झपकाएंगे तो ऑडियंस को नहीं दिखेगा। तो कैमरा की सेंसिटिविटी को समझना पड़ेगा कि आप वहां पे कैमरे के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, और कैमरे का जो अपर्चर होता है उतना छोटा है, इतना ही बड़ा होता है ना अपर्चर, और ऑडियंस इतना बड़ा है। तो ऑब्वियसली आप इतने छोटे चीज के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको अपने एक्सप्रेशन को बहुत मिनिमम रखना होगा, सटल तरीके से करना होगा, अदरवाइज बहुत लाउड हो जाएगा। क्योंकि आप अगर आप समझेंगे कि इतना बड़ा अपर्चर है, जैसे थिएटर जैसे किसी भी ऑडिटोरियम का होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए नहीं, मेरा ऑडिटोरियम जो है यहाँ पे कैमरा है, इतना छोटा सा है वो, और इतना सेंसिटिव है वो कि मेरे हर मूवमेंट को वो कैप्चर कर रहा है, हर चीज देख रहा है वो। तो ये मतलब बेसिक हर आदमी बोलता है ये कि बहुत लाउड नहीं होना चाहिए, लेकिन थिएटर में एट द सेम टाइम बहुत लाउड होने की जरूरत है। लेकिन चीजें वही करनी है, आपको एक्सप्रेशन वही देना है, बस स्केल कम करना है उसका। और जैसे अभी हम बात करें कि आज के सिनेमा की ना, जैसे हम आज का जो सिनेमा है जो OTT पे आ रहा है या वेब सिनेमा है, तो उसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी चीजें जो है ना टूटे हैं, भ्रम टूटे हैं लोगों के। पहले लगता था कि एक्टर एक ऐसा ही होना चाहिए। आप देखेंगे ना, पहले बहुत सुना होगा आपने कि एक्टिंग करते हैं तो सबसे ज्यादा काम है आपकी बॉडी पे काम करना, सबसे ज्यादा मतलब आप फिट दिखने चाहिए, आपको स्लिम होना चाहिए, आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, आपका कॉम्प्लेक्शन ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब क्या है ना, जब से रियलिज्म सिनेमा में आया है, क्योंकि और ये कितना गलत था, आप सोचिए कि दुनिया में हर तरह का इंसान है ना, हर तरह के लोग हैं, लेकिन एक्टिंग केवल कुछ चंद तरीके के लोग कर रहे हैं। आप लेकिन कैरेक्टर तो हर तरह का है ना, हर तरह के कैरेक्टर लिखे जा रहे हैं, लेकिन एक्टर लेकिन इसी तरीके के होने चाहिए। तो बहुत ही मुझे लगता है कि इरेशनल बात थी वो, कि कैरेक्टर तो आपके बहुत व्यापक हैं, मतलब 1000 तरीके के कैरेक्टर हैं, लेकिन एक्टिंग कौन करेगा, एक्टर कौन होगा, वो डिफाइंड है कि ऐसे लोग ही एक्टर बनेंगे। तो वो बहुत मुश्किल होता था। मतलब एक पहले से फिट पैरामीटर था कि बहुत गोरा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, हीरो सांवला नहीं हो सकता है। मतलब ऐसा लोग कहते हैं कि हिंदी सिनेमा में सत्या में मनोज बाजपेयी पहले सांवले हीरो थे। हिंदी सिनेमा आज़ादी के 50 साल बाद, 60 साल बाद पहला सांवला हीरो आता है तो मनोज बाजपेयी सत्या में आते हैं। तो ये दुर्भाग्य है, मतलब मुझे लगता है कि बहुत इनजस्टिस कर रहे थे हम सिनेमा से, या फिर इस पूरे आर्ट के फॉर्म से, क्योंकि कैरेक्टर तो हर जगह के लिखे जा रहे हैं ना। मतलब इतना ज्यादा होता था कि कोई सांवला भी कैरेक्टर है तो गोरे ही एक्टर को सांवला बनाया जाता था। इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि हम सांवले एक्टर को कास्ट करें, गोरे को ही सांवला बना देते थे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे डायरेक्टर ने एक्टर तो गोरा ही लिया है लेकिन उसको सांवला बनाया है क्योंकि डायरेक्टर की डिमांड है। लेकिन अब ये चीजें बदल रही हैं। अब हर तरह का इंसान, क्योंकि जो कैरेक्टर है वो हर तरीके का है, वो कैरेक्टर मतलब हमारे ही दुनिया से आ रहा है ना, इसी दुनिया का कैरेक्टर है, तो इसी दुनिया के लोग होने चाहिए। एक नौकरी करने वाले इंसान का कैरेक्टर है तो नौकरी करने वाले लोग किसी भी तरीके के हो सकते हैं, तो कोई भी कपड़ा पहन सकता है, उसकी हाइट कितनी भी हो सकती है, उसका लुक कैसा भी हो सकता है, वो मोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है वो। तो इससे क्या हो ना कि बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बॉडी से ज्यादा मुझे लगता है अब आज का जो सिनेमा है ना OTT या फिर जो नया सिनेमा है, उसमें बॉडी से ज्यादा काम करने की जरूरत है, इंटरनलाइज करने की। अंदर इंटरनल चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बाहरी आपका आउटलुक तो कास्टिंग डायरेक्टर तय करेगा ना, आप उस पर छोड़ दीजिए। ये कास्टिंग डायरेक्टर का काम है कि आप किसी कैरेक्टर में फिट बैठते हैं कि नहीं, तो वो काम हमें कास्टिंग डायरेक्टर के लिए छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब आप तैयारी जब कर रहे हैं तो आपको इंटरनली ज्यादा काम करने की जरूरत है। उस कैरेक्टर की साइकोलॉजी, उस कैरेक्टर का बिहेवियर, ज्योग्राफी, डिक्शन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के जमाने। पहले क्या होता था कि बोलते स्विमिंग सीख लो, हॉर्स राइडिंग सीख लो, मतलब जूडो सीख लो, कराटे सीख लो, मतलब बेसिक 4-5-10 चीजें थी सीख लो, चेहरे पे मलाई लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, बस एक्टर हो गए। लेकिन अब एक्टर की डिमांड जो है ना इससे ज्यादा है। अब ज्यादा डिमांड करते हैं एक्टर से।
ऑडियंस भी ज़्यादा डिमांड करती है। ऑडियंस को लगता है कि वो दिखना चाहिए वो, मतलब अगर आप जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो प्रॉपर आपके चेहरे से और आपकी बातों से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से दिखना चाहिए। और आप किसी भी कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, वो तब दिखेगा जब उसको प्रॉपर इंटरनलाइज करेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे कैरेक्टर के बारे में। मतलब यहाँ तक कि मतलब लोग कहते हैं कि अगर आप अच्छे कैरेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो उसका आपको जोडियक साइन भी पता होना चाहिए कि किस महीने में पैदा हुआ है वो। अब आपको डायरेक्टर से पूछना चाहिए कि जिसमें कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ उसका जोडियक साइन क्या है, वो लिब्रा है, टॉरस है कि कैंसर है, क्योंकि हर उसके हिसाब से भी आपका बदलता है, मतलब बात करने का तरीका बदलता है। वो कहाँ से है तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही है, और किस पीरियड में है। अगर 80s का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो आपको 80s के तरह के रेफरेंसेज होने चाहिए, उस समय लोग कैसे बात करते थे। आप अभी हम जैसे बात कर रहे हैं उसी को हर कैरेक्टर को प्ले नहीं कर सकते हैं। तो मतलब बहुत ही चैलेंजिंग काम है, मुझे तो बहुत चैलेंजिंग लगता है कि आप अपने को छोड़ के दूसरे कैरेक्टर को जीना। बहुत सुंदर बात भी, बहुत रोमांचित भी करती है सोच के कि हमें एक ही जीवन में 50 लोगों के जीनो, मतलब 50 या 100 लोगों को जीने का मौका मिलता है। मतलब मैं तो नहीं जी सकता हूँ, आप लोग जी सकते हो। मतलब अरे इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लें अगर, कि चलो हमें 2 महीने के लिए मेरा नाम अगर अंजलि है, मैं अंजलि हूँ, तो मुझे रूपा बन के जीना है 2 महीने के लिए। तो कितनी खूबसूरत बात है कि मुझे मतलब रूपा के बारे में पढ़ना है, रूपा कैसे बिहेव करती है, कहाँ से आती है, क्या मतलब कौन सा लैंग्वेज यूज करती है वो। तो प्रिपरेशन, तो जितना ज़्यादा हम उसको इन्वॉल्विंग बनाएंगे, जितना सुंदर बनाएंगे। और डायरेक्टर से खूब सारा बात कीजिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि डायरेक्टर आपको बस कैरेक्टर ब्रीफ कर सकता है, उसको बता सकता है कि कैरेक्टर यहाँ से। बहुत सारा होमवर्क एक्टर को खुद ही करना होता है, क्योंकि अल्टीमेटली परफॉर्म तो आपको करना है। डायरेक्टर बस इतना बोलेगा कि हाँ ओके था कि नहीं, लेकिन अब ओके कैसे होगा ये प्रोसेस, वो होमवर्क आपको करना होगा कई बार, क्योंकि आप एक्टर हैं, वो डायरेक्टर है, उसको बस डिसाइड करना कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे मिला कि नहीं, ये शॉट इस तरीके से आया कि नहीं, जो मैंने कैरेक्टर विजुअलाइज किया है वो पोर्ट्रे आप कर पाए कि नहीं। लेकिन पोर्ट्रे कैसे कर पाएंगे ये मुझे लगता है कि इसका होमवर्क आपको करना होगा। तो खूब सारा पढ़ना, म्यूजिक सुनना, मतलब जहां से भी एक्सपीरियंस मिले आप उसको लीजिए। और ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि मतलब ट्रेंड एक्टर जब बोलते हैं लेकिन ये भ्रम में मत रहिए कि ट्रेनिंग केवल फिल्म स्कूल में ही हो सकती है। ट्रेनिंग आप दिल्ली में रहते हुए भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, एक शहर में रहते हुए भी ट्रेनिंग आप बिना किसी स्कूल की भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। जरूरत ट्रेनिंग की है। जरूरत ये नहीं है कि आप किसी स्कूल में या किसी फिक्स्ड फॉर्मेट में ही ट्रेनिंग लें। और आपको पता होना चाहिए ट्रेनिंग में क्या क्या सीखना है मुझे, और वो कहीं से भी सीख सकते हैं। आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स हैं, मास्टर क्लासेस हैं, वहां से सीख सकते हैं। या फिर अलर्ट रह के ऑब्जर्व करके आप जहां भी जाते हैं वहां ऑब्जर्व कीजिए लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, किसी किसी सर्टेन सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं। और एक और चीज में मतलब मुझे लगता है कि एक्टर को ना केवल उसी समय एक्टिंग नहीं करना चाहिए जब वो किसी रोल की तैयारी कर रहा है। मुझे लगता है कि एक्टर को एक हमेशा मतलब कोशिश करनी चाहिए कि अलग अलग कैरेक्टर को जिए हो। मतलब जब सुबह उठते हैं आप सोचिए कि मैं आधे घंटे 1 घंटे के लिए ना ऐसे बिहेव करती हूँ या ऐसे बिहेव करता हूँ, तो आप जी सकते हो, लिव्ड एक्सपीरियंस ले सकते हो आप कि आज अपने मतलब आप अपने मम्मी की तरह बिहेव करो या अपने भाई की तरह बिहेव करता हूँ मैं। तो ये भी एक ट्रेनिंग का तरीका हो सकता है। या कोई आपने किसी को देखा हो, आप जिसको जानते हो, या कोई कहानी पढ़ी है आपने, तो आप कोशिश करो कि एक दिन उसकी तरह जी के देखते हैं। जो कहानी मैंने पढ़ी है कल, उसमें जो कैरेक्टर था उसको जी के देखो आप। उसके लिए किसी जरूरत नहीं कि आप प्ले ही करो या स्टेज पे ही हो, आप रियल टाइम में भी आप अपने दिमाग से उसको प्ले कर सकते हो, चाहे कोई देख नहीं रहा हो। बहुत एडवर्स कैरेक्टर नहीं हो, मतलब जिसको आप प्ले कर सकते हो रियल लाइफ में, तो आप कोशिश कर सकते हो प्ले करने की। या फिर हर हर आदमी के पास 5 6 10 दोस्त तो है ही हैं, तो आप प्रैक्टिस ये भी कर सकते हो कि कुछ 4 5 दोस्त घर पे आते हैं तो उनको आप एक्ट करके दिखाओ कि भाई मैंने ये कहानी पढ़ी और ये कैरेक्टर मैं इसको एक्ट करके दिखा रहा हूँ, मैं आज ऐसे बिहेव करूंगा तुम्हारे सामने। तो इसको जितना ज्यादा मतलब अपने लाइफ के प्रोसेस में ले आएंगे ना, जीना एक्टिंग मतलब एज एन एक्टर जीना शुरू कीजिए। मुझे लगता है कि मतलब जैसे मैं पवन हूँ और मुझे एक्टर बनना है, तो मैं
हमेशा मतलब मैं कोशिश करूंगा कि अलग अलग कैरेक्टर को जीने की कोशिश करूंगा कि मतलब पवन तो मैं हूँ, मतलब पवन तो मैं कभी भी प्ले कर सकता हूँ, लेकिन बाकी अलग अलग कैरेक्टर मैं कैसे प्ले करूँ। तो जब भी मुझे मौका मिले या रियल लाइफ में भी मैं अलग अलग तरीके से बिहेव करने की कोशिश करूंगा, दिमाग में मतलब थॉट लेवल पे मैं अलग अलग एक्टर को जीने की कोशिश करूंगा। और तो ये तो मतलब मुझे लगता है कि एक्टिंग बहुत सारा कुछ जानते होंगे आप लोग, मैं बहुत सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ वो आप पहले से भी जानते होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता मैं सेंसिबल साउंड कर रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि एक्टिंग तो करने वाली चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब बता के तो मुझे लगता है कि एक्टिंग जब तक आप परफॉर्मेंस की चीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा सुनना और इन्फॉर्मेशन बहुत है आजकल, मुझे लगता है ना बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, मतलब ज़रूरत है उसको करने की, एक्सपेरिमेंट करने की, परफॉर्म करने की। जैसे मैं जो बोल रहा हूँ तो बहुत कितने लोगों ने बोला होगा, आप गूगल पे एक टाइप करेंगे ऐसी बातें हज़ारों आ जाएंगी। तो अब ज़्यादा ज़रूरत क्या है कि आप उसको जीना शुरू कीजिए। इन्फॉर्मेशन बहुत है, मतलब बहुत सारा, मतलब और आपने पढ़ लिया है बहुत सारा, तो अब उसको रियल लाइफ में मतलब रियलिटी में बदलना ज़रूरी है। मतलब आज का जो ज़माना डिजिटल एरा में इन्फॉर्मेशन बहुत है और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कभी-कभी नुकसान भी करता है। बहुत सारा सुनेंगे ना आप, तो आप खुद ही इल्यूज़न हो जाएँगे, अरे करूँ क्या मैं? इतना सारा इन्फॉर्मेशन लेके करेंगे क्या? तो जितना ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन जितनी ज़रूरत हो उतना ही लीजिए। मतलब बहुत सारा वर्कशॉप भी अटेंड नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है। ये जितनी ज़रूरत हो, उसके बाद आप अपने पे काम करना शुरू कीजिए। वो ज़्यादा आपको मदद देगा। लेकिन मतलब उसको प्रैक्टिस भी तो करना ज़रूरी है, जो आपने सीखा है। तो मुझे लगता है कि आपने कोई 1 घंटे का लेक्चर सुना आपने, तो उसको कम से कम 2-3 महीने, 1 महीने आपको उसको उसको प्रैक्टिस भी करना होगा। महीने में 10 लेक्चर ही सुनते रहेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, आपके केवल ब्रेन में है वो। आप उसको बोलने के लिए मतलब करने के लिए बोल दिया जाएगा तो बहुत मुश्किल होगा आपको बोलना। तो कैरेक्टर मतलब किसी भी कैरेक्टर की तैयारी कैसे करते हैं, मतलब बेसिकली मैं इसी पे बात करना चाहता था कि कोई भी कैरेक्टर आपको मिले, तो उसकी तैयारी कैसे करते हैं। तो उसको मैं समरी में सम अप करूँ, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले वो कहाँ का है, उसकी ज्योग्राफी क्या है, ये पता होना चाहिए। उसका टाइम क्या है, टाइम पीरियड क्या है, किस टाइम पीरियड में है वो। और ज्योग्राफी जैसे पता चलेगा, ज्योग्राफी में आपको उसका फेशियल एक्सप्रेशन आ जाएगा कि वहाँ के लोग कैसे, एक्सप्रेशन क्या होता है। जैसे राजस्थान के आदमी का एक्सप्रेशन और बिहार के आदमी का एक्सप्रेशन बहुत अलग होगा। तो एक्सप्रेशन भी आप फेसेस देखिए, फेसेस आप उसके लिए आप गूगल के भी रेफरेंस ले सकते हैं। फेस देखिए, बहुत सारा फेस रीडिंग कीजिए कि कैसे फेसेस कैसे होते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं। सिनेमा देखिए, सिनेमा बहुत बड़ा माध्यम है, मतलब कि अल पचिनो मतलब या सॉरी टोरेंटिनो टोरेंटिनो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, वो बोलते हैं कि आई डिडंट गो टू फिल्म स्कूल, आई वेंट टू फिल्म्स। मैं फिल्म स्कूल में नहीं गया, मैं फिल्म देखने गया। तो फिल्म में सबसे अच्छी बात क्या है कि इसका स्कूल ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको ऑपरेशन थिएटर में ही जाके आप सर्जरी सीख सकते हैं, लेकिन आपको एक्टर बनना है तो सिनेमा देख के, मतलब कितना इजीली अवेलेबल है ना, आप बहुत सारा सिनेमा देख के एक्टिंग सीख सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा क्लासरूम आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सिनेमा आपको एज ए क्लासरूम ले सकते हैं, स्टडी कीजिए कि एक्टर कैसे बिहेव कर रहा है, जो आपको एक्टर पसंद हो आप उनको फॉलो कीजिए कि वो कैसे मतलब अलग अलग कैरेक्टर को कैसे प्ले करते हैं। एक ये तरीका हो सकता है। तो ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से कैरेक्टर बिलोंग करता है। उसका टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस का टाइम पीरियड में। और जब ये सच सारी चीज़ें मालूम पड़ेंगी तो फेसेस आपको मालूम चलेंगे। दूसरा, जिस सब्जेक्ट पे आप वो नाटक है या सिनेमा है, उस सब्जेक्ट का थॉरो नॉलेज होना चाहिए आपको, सतही नॉलेज नहीं। मतलब बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए, जितना शायद आप प्ले नहीं, मतलब बहुत बार आपको लगेगा ना कि कैरेक्टर तो इतना ही, मतलब 10 ही मिनट का कैरेक्टर है, इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत क्या है। जैसे एग्जांपल मैं लूँ, जैसे अगर ट्राइबल रूपा का कैरेक्टर प्ले करना है, तो एक्टर को ऐसा लग सकता है कि मुझे तो बस उसकी तरह साड़ी पहनना है और उसका एक्सप्रेशन लाना, उसकी भाषा पकड़नी है। मुझे क्या ज़रूरत है जानने की कि लकड़ी कैसे उठाते हैं, अगर लकड़ी नहीं उठाना है तो, ना। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके प्ले में ये सीन नहीं है कि लकड़ी जंगल से कैसे काटते हैं या फिर लकड़ी कैसे उठाते हैं, तो आप वैसे अगर आपने प्रैक्टिस, तो आपको लगेगा क्यों प्रैक्टिस करूं मैं, क्यों देखूं मैं।
लेकिन फर्क क्या पड़ेगा, जैसे आप एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, जैसे कोई औरत अगर बोझा उठाती है ना, बोझा उठाया उसने बहुत समय तक, तो अगर वो बोझा नहीं भी उठाई है जिस समय, जो उसका जो वॉक करने का तरीका होगा ना, जो गेज होगा, वो अलग होगा एक नॉर्मल इंसान से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो बोझा उठाती है तो उसके नॉर्मल जो गेज होगा, जो चलने का तरीका होगा, उसमें वो आएगा। मतलब हर आदमी का तरीका अलग होता है। जैसे एक नर्सिंग स्टाफ का एग्जांपल लूँ मैं, जैसे जो नर्स होती हैं, आप मेडिकल में जाएं हॉस्पिटल में, आप देखेंगे जब भी वो चलती है ना, तो उनके दोनों हाथ उनके बॉडी से अलग होते हैं। ऑब्जर्व कीजिए कि वो हाथ, जैसे हम चलते हैं तो चिपका के चलते हैं, बट जब वो चलती है तो उनके हाथ अपने शरीर से अलग होते हैं, ऐसे थोड़ा दूर करके चलती हैं, क्योंकि उनके हाथ, उनको लगता है कि हमेशा इन्फेक्टेड है, तो बॉडी को टच कम करना होता है। तो ये ऑब्जर्वेशन है छोटी छोटी, कि कैसे कोई कैरेक्टर बिहेव करता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको वो रियल में प्ले भी करना हो, लेकिन जो रियल लाइफ में आपका कैरेक्टर कर रहा है वो आपके क्राफ्ट में आना चाहिए, क्राफ्ट में दिखना चाहिए, चाहे वो सीन में है या नहीं है। इसलिए थॉरो स्टडी बहुत जरूरत है, तो पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो ये मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसके बारे में पढ़िए, सब्जेक्ट के बारे में पढ़िए, किस सब्जेक्ट, मतलब ट्राइबल पे है, या फिर किसी नक्सल का रोल कर रहे हैं, या फिर किसी कॉर्पोरेट का काम कर रहे हैं, तो पता होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अभी फैमिली मैन देखा होगा आपने, बहुत लोगों ने ना, फैमिली मैन 2 बहुत लोगों ने देख लिया होगा। जब मनोज वाजपेयी उस कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को मारता है, तो जो इतना रियल क्यों लगता है वो, क्योंकि हम सब उसे रिलेट कर पाते हैं, मतलब जिसने भी काम किया, नौकरी किया है, वो रिलेट कर पाएगा। तो मनोज वाजपेयी को पता होगा कि कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है एक IT एम्प्लॉय को, और पता नहीं होगा उनको, तो वो जो थप्पड़ मारेंगे ना, उतना उसमें पैशन नहीं आएगा। मतलब वो थप्पड़ नहीं मारते, बहुत पैशनेलिटी थप्पड़ मारते हैं। और वहां पे आपको अचानक से ऑडियंस क्या होता है, मजा आता है, लगता है कि अरे हमने मार दिया थप्पड़ आपने अपने बॉस को, क्योंकि इतना रियल है वो, इतना लिव्ड एक्सपीरियंस है। तो ये पता होना चाहिए। जैसे IT, आप किसी IT एम्प्लॉय का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि IT एम्प्लॉय का साइकोलॉजी क्या होती है, कितना परेशान होता है वो, उसके लिए मतलब HR क्या रोल प्ले करता है, या एक, तो जरूरी नहीं कि आप काम करके देखें, आप उन दोस्तों के साथ बैठिए जो काम करते हैं ऑलरेडी, आप केवल ऑब्जर्व कीजिए। ऐसा उनको बताइए मत कि यार मैं स्टडी कर रहा हूँ इस कैरेक्टर के लिए, तो अदरवाइज वो बिहेव करने लगेंगे, बहुत ज्यादा ड्रामेटिक बिहेव करने लगेंगे। आप उनको बस साइलेंटली जाइए उनके घर, और उनके बैठ के ऑब्जर्व कीजिए कि क्या बात करते हैं वो, कैसे बिहेव करते हैं, क्या फ्रस्ट्रेशन है उनकी। तो ऑब्जर्व करना, स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। जैसे एक कहा जाता है कि एक अच्छे फिल्म में और एक बुरे फिल्म में बस यही फर्क होता है, डिटेलिंग का, डिटेलिंग का फर्क होता है। और अच्छे एक्टर में और बुरे एक्टर में भी बस एक बहुत, आप कोई भी देखिए, मतलब अपना एग्जांपल लेके देखिएगा कि एक बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस और एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, आप देखेंगे कि कैरेक्टर को दोनों प्ले कर रहे हैं, डायलॉग सेम बोल रहे हैं, बस फर्क क्या होता है, डिटेलिंग का। जब डिटेलिंग की कमी होगी तो अच्छे परफॉर्मेंस और बुरे परफॉर्मेंस में बहुत ही माइन्यूट, और ये वो जो डिफरेंस है डिटेलिंग का, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसको अच्छे और बुरे में बांट देते हैं। अच्छी फिल्म और बुरी बुरी फिल्म में भी यही अंतर होता है, डिटेलिंग का अंतर होता है। अब डिटेलिंग नहीं होगी तो आप रिलेट ही नहीं कर पाएंगे, नकली लगेगा, फेक लगेगा। मतलब तो रियल, रियल या बहुत सारे लोग रिलेट कर पाए, उसके लिए इंपॉर्टेंट है डिटेलिंग। बहुत डिटेलिंग होनी चाहिए। डिटेलिंग कहाँ से आएगी, स्टडी से आएगी। जितना ज्यादा आप कैरेक्टर को पढ़ेंगे, कैरेक्टर को जानेंगे आप। मतलब मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा था, जोडियक साइन, मतलब ये मतलब एक मेटाफर है, जरूरी नहीं है जोडियक साइन ही जाने। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब कुछ पता होना चाहिए आपको उस एक्टर के बारे में, उसके कितने भाई बहन थे, उससे भी फर्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैं किसी एक कैरेक्टर को प्ले कर रहा हूँ जो केवल इकलौता लड़का है अपने मतलब घर का, तो उसका जो बिहेवियर होगा वो बहुत अलग होगा। 4 भाई के बीच में पला बढ़ा है, उसका बिहेवियर अलग होगा। 3 बहनों के बीच में एक भाई बड़ा होता है, तो उसका बिहेवियर अलग होता है। तो आपको पता होना चाहिए। वो शायद मतलब उसके मतलब डायरेक्टर ने या स्क्रिप्ट राइटर ने ना लिखा हो, तो आप या तो डायरेक्टर से पूछ सकते हैं, या फिर आप खुद विजुअलाइज कर लीजिए। क्योंकि अब जैसे मान लीजिए आपको डायरेक्टर बोला कि नहीं मुझे नहीं पता है कि कैरेक्टर कितने भाई बहन हैं, लेकिन एज एन एक्टर आप ये खुद भी फिक्शन कर सकते हैं। अगर डायरेक्टर को नहीं पता है तो आप खुद फिक्शन कर लीजिए कि एक्टर के 3 भाई हैं, या वो ऐसा भाई है जिसकी केवल बहनें हैं। तो आपको मदद मिलेगी, एक रेफरेंस मिल जाएगा, आप हवा में एक्टिंग नहीं कर रहे होंगे।
हवा में नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ उसको बेसिक होना चाहिए। तो कुछ चीज़ें कई बार क्या होता है कि डायरेक्टर को या स्क्रिप्ट राइटर इतना डिटेलिंग में नहीं लिखता है, तो कुछ चीज़ें आप खुद भी फिक्शनलाइज कर सकते हैं। जैसे आप दिल्ली का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, ठीक है, आप डायरेक्टर ने बोल दिया कि दिल्ली का कैरेक्टर है, लेकिन आपको नहीं पता है, डायरेक्टर नहीं बता रहा है कि नॉर्थ दिल्ली का है या वेस्ट दिल्ली का है या साउथ दिल्ली का है। हालांकि बताते हैं, ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस मैंने बता दिया, वो बताएगा आपको कि किस दिल्ली का है, ये बहुत बड़ा अंतर है वो। तो अगर डायरेक्टर नहीं बताता है तो आपको एक रेफरेंस ड्रॉ करने के लिए कि आप हवा में एक्टिंग न करें, आपको पता होना चाहिए। तो आप खुद फिक्शन भी कर सकते हैं कई बार कि चलो मैं मान लेता हूँ कि वो एक्टर वेस्ट दिल्ली का है या नॉर्थ दिल्ली का है या यमुना पार्क का है, तो मैं उस तरीके से बिहेव करता हूँ। तो जब आप इस तरीके से करेंगे ना, तो वो वही फर्क नजर आएगा, वो लगेगा कि नहीं हवा में नहीं कर रहा, और लोग रिलेट कर पाएंगे। और जो जब लोग रिलेट कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे, तो रियल लगे, फेक नहीं लगेगा। और आपको नहीं पता है कि कैरेक्टर कहाँ का है या फिर कैरेक्टर का बैकग्राउंड क्या है, तो आप ऐसे हवा में एक्टिंग करो, आपको डायलॉग बोलोगे और आप चेहरे पे आप, मैं पवन ही दिखूंगा, मैं कैरेक्टर तो प्ले कर रहा हूँ रवि का, लेकिन चेहरे पे मुझे पता नहीं है रवि क्या सोच रहा है, ये बोलते समय क्या सोच रहा है, या किस फैमिली बैकग्राउंड से आता है वो, उसकी इकोनॉमिकल किस क्लास से आता है वो। तो मेरे चेहरे पे मैं हमेशा पवन ही दिखता रहूंगा और बोल रहा हूँ रवि का डायलॉग, तो आपको तो पता नहीं चलेगा, ऑडियंस को पता चल जाएगा दिस इज फेक। वो तुरंत डिफरेंस महसूस हो जाएगा कि, या तो बोलेगा कास्टिंग गलत थी, मतलब लोग क्यों बोलते हैं कास्टिंग गलत है, क्यों बोलते हैं कि एक्टर ने अगर होमवर्क नहीं किया है तो ऑडियंस को बोल लगता है कि कास्टिंग गलत है। अगर मान लीजिए लुक आपका सही है, ठीक है, मैं रवि जैसा दिखता हूँ, तो कास्टिंग डायरेक्टर का काम क्या है कि मैं एक आउटलुक रवि जैसा ढूंढे हुए, लेकिन आपके मतलब कास्टिंग डायरेक्टर का काम नहीं है कि आपके अंदर वो वो डिक्शन ला दे, वो आपको खुद लाना पड़ेगा। लेकिन बहुत बार हम क्या बोलते हैं, कास्टिंग गलत है, लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होता है, कास्टिंग सही होती है। होता है क्या कि एक्टर ने होमवर्क नहीं किया होता है, एक्टर को नहीं पता होता है कि वो कहाँ का कैरेक्टर प्ले कर रहा है। जरूरी नहीं है ना कि बिहार का कैरेक्टर है तो कास्टिंग डायरेक्टर बिहार के एक्टर को मौका देगा, ये तो गलत होगा ना, आप भी बोलेंगे अरे फिर तो गलत है ये। वो तो दिल्ली के लड़कों को भी कास्ट कर सकता है ना बिहारी कैरेक्टर प्ले करने के लिए, या राजस्थान का कैरेक्टर प्ले करने के लिए। तो ये आपका काम है कि राजस्थान के कैरेक्टर को आप कैसे लाते हैं अपने अंदर, या बिहार के कैरेक्टर को कैसे लाते हैं। तो बहुत बार देखा होगा, आप लोग बोलते हैं ना कि डिक्शन नहीं आ पाया है, वो अलग प्रोनाउंसिएशन तरीके से बोलते हैं। तो ये एक्टर का काम है, एक्टर की जिम्मेदारी है मुझे लगता है। तो मुझे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा बोल लिया, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए इसे। तो अब आप लोग पूछिए कुछ, मतलब मैं सोचता हूँ कि मुझे लगता है कि थैंक अब ज़्यादा बात करते हैं, आप आपसे पूछते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर सच ग्रेट इनसाइट्स। मतलब इतनी सारी चीज़ें आपने बताई। आई होप जितने भी यहाँ पे एक्टर्स हैं, चाहे वो थिएटर करते हैं या फिर सिनेमा से जुड़े हैं, वो उन सबके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा सेशन। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज टाइप योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स। आप चैट बॉक्स में क्वेश्चंस डाल सकते हैं और वहाँ से मैं एक एक करके आपके सवाल पूछना शुरू करूँगा। सर पहला क्वेश्चन बहुत जल्दी आ गया है। ये क्वेश्चन है गौरव से। ही इज आस्किंग दैट हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन माई सेल्फ एंड माई कैरेक्टर। माई सेल्फ एंड माई कैरेक्टर, ठीक है। तो जैसे प्ले तो आप ही को करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं पवन हूँ और मुझे कैरेक्टर प्ले करना है रवि का एग्जाम्पल में लेता हूँ। तो जो प्ले करेगा, जो आदमी प्ले करेगा वो पवन ही होगा, लेकिन जिसको पोर्ट्रे करना है वो मैं रवि को कर रहा हूँ। तो एज ए पवन मुझे रवि के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, और मुझे जब मैं वर्कशॉप कर रहा हूँ या रिहर्सल कर रहा हूँ, तो मुझे उस समय रवि को जीना होगा। मुझे अपने कैरेक्टर से बाहर निकल के अपने जो बात करने का, जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ तो ऐसे बार बार हाथ कर रहा हूँ ना, ये पवन का तरीका है। रवि हो सकता है कि ऐसे बात करता हो, तो मुझे ये चेंज करना होगा। तो पवन ऐसे करता है और रवि ऐसे करता है, तो ये करना पवन को ही है, तो वो रवि को प्ले करना होगा हमें। तो अपने को डी एसोसिएट करना होगा, थोड़े समय के लिए रवि को जीना होगा, उसके एक्सपीरियंसेस को हमें अनुभव करने होंगे। और ये बहुत ही मतलब मुझे तो बहुत एक्साइटिंग लगता है कि दूसरे कैरेक्टर को जीना। आप इसको एक्साइटिंग तरीके से लेंगे कि चलो कुछ दिन मैं पवन को छोड़ के रवि को जीता हूँ, लेकिन आपको लेकिन ये पता होना चाहिए कि प्ले रवि नहीं कर रहा है, प्ले पवन ही कर रहा है।
तो रवि को पता नहीं होगा सब कुछ, पता करना है पवन को ना, होमवर्क पवन को करना है, पोर्ट्रे रवि को करना है। अब शायद मैं आंसर दे पाया। I hope Gaurav has got his answer. Sir, next question है फाजिल का, और वो पूछ रहे हैं कि एज एन एस्पायरिंग एक्टर वन हैज टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑडिशन वेयर वी आर जज्ड, द प्रोसेस गोज फ्रॉम कास्टिंग डायरेक्टर टू अ डायरेक्टर, और जैसा कि आप खुद डायरेक्टर रहे हैं, सो व्हाट डू यू लुक फॉर इन अ कैरेक्टर, फॉर इन एन एक्टर व्हेन यू see him or her as performing? Now what should an actor keep in mind while appearing for a character? ठीक है, जैसे मान लो मैंने कोई कैरेक्टर लिखा है, ठीक है, और मैं उसके लिए कोई एक्टर ढूंढ रहा हूँ, तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है लुक, जो मेरे दिमाग में होता है। जो आप कैरेक्टर लिखते हैं तो लुक दिमाग में होता है, तो लुक तो इम्पॉर्टेंट है कि एक फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। मुझे पता होता है कैरेक्टर लंबा है या मीडियम हाइट का है या शॉर्ट हाइट का है, लेकिन इसके अलावा, लुक के अलावा जो बाकी चीजें हैं ना, वो हम एक्टर को जब ऑडिशन या फिर जब हम बात करते हैं तब मालूम चलता है कि ये जो एक्टर है वो मेरे कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर सकता है कि नहीं। जैसे कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा अंतर होता है। जैसे एक मुंबई में पला बड़ा लड़का, मतलब ये मैं लिमिटेशन नहीं तय कर रहा हूँ, लिमिटेशन कुछ नहीं, एक्टिंग के कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि एक मुंबई में बैठा हुआ लड़का जो कभी भी नहीं गया है कहीं छत्तीसगढ़, वो छत्तीसगढ़ का कैरेक्टर प्ले कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। उसके वो पोटेंशियल पे डिपेंड करता है कितना ज्यादा उसमें पोटेंशियल है। जैसे आपने देखा हुआ धोबी घाट, देखी है आप लोगों ने फिल्म? धोबी घाट एक फिल्म आई थी, उसमें प्रतीक बब्बर आज मतलब नहीं निकले हैं बॉम्बे से बाहर, लेकिन वो प्ले करते हैं बिहार के एक मुसहर के कैरेक्टर प्ले किया है उसने, और बहुत लोग तारीफ भी करते हैं। तो उसने कितना काम किया होगा, स्टडी किया होगा उसके ऊपर। तो एज ए डायरेक्टर मैं देखता हूँ कि एक्टर कितना मतलब कितना पैशनेट है उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। मैं डायरेक्टर, मैं नहीं सोचता हूँ कि मैं जहाँ का कैरेक्टर लिखता हूँ वहीं का कैरेक्टर कास्ट करूँ। लेकिन अगर एक्टर में पोटेंशियल नहीं है या फिर उतना ज़्यादा नहीं देना चाहता है, तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा कि अगर मैं वहीं का कास्ट कर लूँ। डायरेक्टर के लिए तो ईजी होगा, लेकिन इससे क्या होगा कि फिर अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फिर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी अगर मैं वहीं का कैरेक्टर वहीं के लोगों को कास्ट करूँ। और दूसरा भी हो सकता है, ये एक से एक नुकसान भी हो सकता है मुझे, कि मुझे कुछ नया मिलने का संभावना कम हो जाएगा। क्योंकि अगर आप जब प्रिपेयर करते हैं ना, प्रिपरेशन के दौरान बहुत नई चीजें भी ढूंढते हैं आप। एक दिल्ली का लड़का बिहार के कैरेक्टर को प्ले कर रहा है ना, हो सकता है कि बिहार के लड़के से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे वो, उसने तैयारी अच्छी की है। क्योंकि बिहार के लड़का तो लगेगा कि मैं तो ठीक, मुझे तो खुद ही को प्ले करना है ना, तो वो बहुत एक ओवर कॉन्फिडेंस या तैयारी की कमी दिख सकती है। तो कई बार तो टोटली एक्टिंग पे डिपेंड करता है, एक्टर पे डिपेंड करता है कि कितना आप अपने आप को सबमिट करने के लिए तैयार हैं। और एक और चीज बहुत मैं मिस कर गया था क्लास के दौरान बोलना, ये कि आज जब तैयारी, आपका काम है तैयारी करना, ठीक है, आपने होमवर्क कर लिया, कैरेक्टर की तैयारी कर ली, लेकिन जब आप एक्टिंग कर रहे हो ना, तो सबमिट कीजिए डायरेक्टर के सामने। उस समय आप होमवर्क आप खत्म हो गया, आप तैयारी कर लिया, आपका काम खत्म। अब डायरेक्टर को जो चाहिए उसको निकालने दीजिए आपके अंदर से, उसमें फिर अपना दिमाग मत लगाइए। आपका काम क्या है, तैयारी करना कैरेक्टर की। वो डिसाइड डायरेक्टर करेगा कि उसको कौन सा शॉट या कौन सा टेक अच्छा लग रहा है, कैसे करवाना है, वो आपको डायरेक्टर बताएगा। और आपने तैयारी की है तो आप उसके हिसाब से आप एक्टिंग कर लोगे। तो सबमिट करना बहुत जरूरी है। मतलब हम जैसे मान लो पवन हूँ मैं, तो मुझे सबमिट करना होगा डायरेक्टर की, भाई जो मुझसे डायरेक्टर कराना चाहता है मैं करूंगा उसको। मुझे रवि का कैरेक्टर प्ले करना, मैंने अपना काम कर, मैंने होमवर्क कर लिया। जैसे हम पहाड़ा याद करते हैं ना, टेबल याद करते हैं, तो अगर हमने 2 से लेकर 20 तक का टेबल याद किया है, तो डायरेक्टर के ऊपर है कि वो 18 का टेबल मुझसे पूछता है या 17 का पूछता है या 16 का पूछता है। तो जो पूछेगा मैं बताऊंगा। मेरा काम क्या है कि सारे टेबल याद करना, तो मेरा काम है कि तैयारी करना। डायरेक्टर का काम है कि मुझसे क्या वो यूज करता है, उसमें से कौन सा चीज रखता है, कौन सा नहीं रखता है। तो कास्टिंग डायरेक्टर का रोल है, बिल्कुल बड़ा रोल होता है। तो लेकिन जब ऑडिशन जब क्लिप आता है ना, जब हम देखते हैं, जैसे मैंने अपनी फिल्म अभी द्रौपदी बनाई थी, तो बहुत सारे ऑडिशन क्लिप्स आए थे मेरे पास, कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू में गया था। तो
केवल मैंने ये नहीं देखा कि वो डायलॉग डिलीवरी कैसी है, हाँ, मतलब मैं बहुत सारी चीजें देखते हैं कि वो एक्सप्रेशन, मतलब जो चीज बोल रहा है वो कितना एक्सप्रेसिव है, या मेरे कैरेक्टर के कितना पास है। वो बहुत ज्यादा दूर है तो मुझे लगेगा कि बहुत काम करना पड़ेगा एक्टर को, मुझे लगेगा कि थोड़ा पास में है तो मुझे सहूलियत होगी उसको यहाँ लाना, इस कैरेक्टर के लिए लाना। तो कास्टिंग डायरेक्टर का रोल है, लेकिन मुझे लगता है कि डायरेक्टर के अगर आप संपर्क में हैं तो डायरेक्टर के लिए भी आसानी होती है एक्टर को चुनना, क्योंकि अपने आसपास जिस के लोगों को ही ज़्यादा प्रेफरेंस, मतलब हम ज़्यादा जानते हैं। लेकिन कभी कभी मतलब दोनों का अपना अपना रोल है, कास्टिंग डायरेक्टर का भी रोल है और डायरेक्टर का भी रोल है। Thank you, sir. I hope Fazil must have got his answer. Sir, next question भरत का है। जैसे आपने यूरोपियन मेथड्स या फिर एक्टिंग स्टाइल्स की बात करी थी, तो क्या आप कुछ बुक्स रिकमेंड कर सकते हैं फॉर एक्टर, फॉर एन एक्टर? एक्सप्रेशनिज्म पे बहुत सारी बुक हैं, जर्मन एक्सप्रेशनिज्म पे। आप जर्मन एक्सप्रेशनिज्म टाइप करेंगे फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, तो बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी एक्सप्रेशंस पे। और मिनिमलिस्ट एक्टिंग भी, इससे रिलेटेड भी मिनिमल एक्टिंग, मतलब बुक का नाम मुझे नहीं पता लेकिन सब्जेक्ट बता सकता हूँ। मिनिमलिज्म, मिनिमलिज्म एक्टिंग में मिनिमलिज्म कैसे होता है इसको बता सकते हैं। या फिर इटालियन न्यूरियलिज्म, इससे रिलेटेड बुक पढ़िए। मतलब 3 चीजें हैं, जर्मन एक्सप्रेशनिज्म, इटालियन न्यूरियलिज्म और मिनिमलिज्म। ये 3 चीजों के आसपास पढ़ेंगे तो ये यूरोपियन क्राफ्ट है डेवलप हो जाएगा। तो जहाँ पे ड्रामा एलिमेंट कम होगा, मतलब बहुत सारी चीजें रियल तरीके से पोर्ट्रे होंगी, जो आजकल मुझे लगता है कि आजकल ज्यादा जरूरत है। आई होप भरत ने एक नोट लिख लिया होगा। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिंटू जी का। शी इज आस्किंग दैट यू सेड दैट अ डायरेक्टर ऑलवेज ब्रीफ हिज एक्टर्स, इज इट इंडीड? फिर से कम, डायरेक्टर अ डायरेक्टर ब्रीफ हिज एक्टर्स, हाँ ऑलवेज ब्रीफ हिज एक्टर, इज इट इंडीड? लाइक ये हमेशा होता है ऐसा या नहीं? नहीं बिल्कुल, ये तो सब ब्रीफ तो करते हैं, चाहे डायरेक्टर जितना कम ही पता हो, लेकिन ब्रीफ करता है डायरेक्टर। ब्रीफ नहीं करेगा तो फिर अ, अगर उसको लाइक नहीं इन पता है डिटेल्स? हाँ, अगर उसको नहीं पता है कि उसको क्या डिसाइड करेगा कि कौन सा टेक उसे रखना है, तो डायरेक्टर को पता होता है कि उसको क्या चाहिए, और वो चाहिए वही ब्रीफिंग देता है वो कि मुझे ये चाहिए कि एक्टर ऐसे बिहेव करेगा। तो जो उसके दिमाग में जो कैरेक्टर की तस्वीर होती है एक्टर की, वही वो ब्रीफिंग देता है कि ऐसे होगा, ऐसे बिहेव करेगा, ऐसे उसको गुस्सा करना है, या ऐसे उसको उदास होना है। तो डायरेक्टर ब्रीफिंग देता है, और उस ब्रीफिंग को लेके आप कितना काम करते हैं, कितना अंदर तक जाते हैं, ये एक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि डायरेक्टर तो ब्रीफ देता है, लेकिन अगर आप एक अच्छे एक्टर हैं तो आप अपना भी तो कुछ करेंगे ना अपने हिसाब से भी। अगर डायरेक्टर ही एक्टिंग कर ले फिर तो अब करना आपको है। तो वो ब्रीफ दे देगा कि मैं ये चाहता हूँ, अब ये कैसे आएगा उसकी तैयारी आपको करनी है, और उसमें आपको वेरिएशंस भी देने होते हैं। डायरेक्टर को वेरिएशन नहीं पता होता है बहुत बार, आप कुछ अच्छा भी करके दे सकते हैं, उसमें इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं। तो कई बार डायरेक्टर भी लगता है ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, तो कमाल कर दिया इसने। तो वो होमवर्क से आएगा। थैंक यू सर। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है रंजीता जी का। शी इज आस्किंग, एज अ डायरेक्टर व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस यू गिव टू एक्टर्स बिफोर अ शॉट, instructions that help actors to emote better and understand your vision? ठीक है, मुझे लगता है कि जब एक्टर एक्टिंग कर रहा होता है ना, बहुत फ्रेजाइल होता है एक्टर। तो मैं सबसे ज़्यादा कोशिश ये करता हूँ कि एक अच्छा, मतलब एक्टर के पास कम से कम लोग जाएं, कम से कम लोग बात करें एक्टर से। मतलब सेट पे अगर 100 लोग हैं तो एक ही 2 लोग एक्टर से बात करें, क्योंकि उसके पास कम से कम इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। मतलब तैयारी कर चुका है शूट की, मतलब मैं बात कर रहा हूँ जब शूट हो रहा होता है तब तैयारी हो चुकी है अगर, तो मैं, क्योंकि मुझे लगता है एक्टर बहुत फ्रेजाइल होता है, तो उसको किसी भी बात का टेंशन स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुरंत अपने कैरेक्टर से बाहर आ जाएगा और फिर दोबारा जाने में बहुत मुश्किल होती है, मतलब किसी भी एक्टर के लिए। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि एकदम पैम्पर करके एक्टर को रखो, उसको जो चाहिए, मतलब ठंडा पानी चाहिए तो ठंडा पानी मिलना चाहिए, ये खाना है तो वो खाना, मतलब किसी भी तरह की उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तभी वो अपने कैरेक्टर में रहेगा या रहेगी। तो और इंस्ट्रक्शन ये देता हूँ कि कैरेक्टर में रहने की कोशिश में चाहता हूँ। मैंने जैसे मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप जब कम से कम जब आप एक्टिंग कर रहे हो ना, जितनी देर आप सेट पे हो, आप उस कैरेक्टर को जियो। कभी कभी क्या होता है कि एक्टर जो होते हैं आपस में
जैसे टेक खत्म हुआ तो आपस में बात करने लगते हैं बहुत ज़्यादा, और वो अपने आप को बिहेव करने लगेंगे, बहुत जोर से हंसने लगेंगे। अब आपने किया है रोल तुरंत खत्म किया है उदासी वाला, और अगला सीन भी उदासी का है, लेकिन बीच में आप बहुत जोर से हंसने लगेंगे, आप व्हाट्सएप पे कोई जोक पढ़ के हंसने लगे, तो मुझे उस समय बहुत इरिटेशन होती है कि भाई थोड़ी देर के लिए तो कैरेक्टर में हेलो, क्योंकि फिर दोबारा आना पड़ेगा। तो ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। हो सकता है बहुत ब्रिलियंट एक्टर ऐसा कर पाए, लेकिन क्या नुकसान है इसमें? आप थोड़ी देर के लिए आप उसी कैरेक्टर को जी लेंगे, तो व्हाट्सएप का जोक आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, आप कैरी करें। लेकिन जनरली मैंने देखा है ऐसा कि एक्टर तुरंत सीन खत्म होने के बाद तुरंत अपने कैरेक्टर से बाहर आता है और वो लगता है कि अब तो हो गया, जबकि तुरंत अगला सीन भी उसी उसी मूड का है। बहुत जरूरी है। तो कभी कभी मुझे मतलब लगता है, मतलब डिसिप्लिन इसको बोल सकते हो, डिसिप्लिन की कमी, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है एक्टिंग में। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम का। ही इज आस्किंग कि किसी भी फिल्म का जो टोटल इनकम होता है और जो जब फिल्म खत्म होने के बाद जो उसका रेवेन्यू जनरेट होता है, तो किस रेशियो को हम सक्सेसफुल फिल्म बोलेंगे? लाइक यू बीइंग इन द फिल्म इंडस्ट्री, तो किसको हम सक्सेसफुल फिल्म बोलेंगे, किस इस रेशियो में? ये तो बहुत, मुझे लगता है एक सवाल ही गलत है ये, कि सक्सेसफुल मॉनेटरी टर्म पे नहीं होता है। मतलब मुझे जहां तक मेरा मानना है कि सक्सेसफुल, किसी भी फिल्म का सक्सेसफुल रेशियो पैसे से तो नहीं आ सकते हैं। कला है, ये आर्ट है, ये कितने लोगों तक पहुंची, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका सक्सेस आप ऑडियंस से बात करके लगा सकते हैं। तो फिल्म सक्सेसफुल है कि नहीं वो ऑडियंस बताएगा। ये बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट मतलब पैसा नहीं बताना चाहिए। वो काम छोड़ देते हैं ना, वो ट्रेड एनालिसिस का है, वो काम राजीव मसंद का है, उन पे छोड़ देते हैं। तो फिल्म मतलब जिसका जो काम है वो करे, ट्रेड पंडित होते हैं उनका काम है। डायरेक्टर को, एक्टर का काम है कि ऑडियंस को कैसी लगी फिल्म, ये हमें इस पे फोकस करना चाहिए। आप एक्टर ये मत सोचिए कि रेवेन्यू कितना जनरेट किया आपने, वो छोड़ दीजिए। मतलब प्रोड्यूसर्स पे या जो उस बिजनेस में है उनको छोड़ दीजिए। मतलब आप बिजनेस में नहीं है ना, आपका एक्टिंग प्रोफेशन है, आप कलाकार हो, तो आप ये बात, मतलब एज ए डायरेक्टर मैं भी नहीं सोचता हूँ कि मेरी फिल्म कितनी कमाएगी। मैं सोचता हूँ कितने लोगों तक रिलेट करता है, ऑडियंस को कितनी पसंद आती है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। क्योंकि अब हम एक्टिंग कर रहे हैं आप ऑडियंस के लिए, आप प्रोड्यूसर के लिए एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। तो सोचेंगे प्रोड्यूसर के लिए आप कि प्रोड्यूसर के पॉकेट में कितना पैसा जाएगा। आप एक्टर के लिए, ऑडियंस के लिए एक्टिंग कीजिए, और ऑडियंस के लिए एक्टिंग करेंगे तो प्रोड्यूसर को भी कमाई हो जाएगी, ये भी सत्य है। और ऑडियंस को पसंद आएगी तो प्रोड्यूसर भी कमा लेगा। तो फोकस आप ऑडियंस पे कीजिए। प्रोड्यूसर पे फोकस करेंगे तो फिर ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाएगी, मतलब अप्रोच गलत हो जाएगा। जी, कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट को अपने काम पर भरोसा रखना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन भवनीत का है। शी इज आस्किंग कि जब हम कोई भी कैरेक्टर प्ले करते हैं या फ्रेम करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर को प्ले करने वाले का सेंस आता ही है, तो किस हद तक उस कैरेक्टर के सेंस को वो एक्टर रखे, मतलब इमोशंस लेवल पे, जो कि वो एक सक्सेसफुल कैरेक्टर बन पाए? ये देखिए, ये जो डिफरेंस है ना, डिपेंड करता है, कभी कभी डिपेंड करता है किस कैरेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं आपको ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो रियल लाइफ में आप उससे ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, मतलब आपके करीब है, आप अपने जैसा ही कुछ कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो आप उसमें अपना एसेंस रख सकते हैं। अगर आप लगता है कि मैं अपने ही तरीके का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, लेकिन आप बिल्कुल अपोजिट कर रहे हैं, तो बिल्कुल एसेंस खत्म करना होगा। ऐसे मान लीजिए मैं एक, कोई लड़की या कोई लड़का ग्रेजुएट है, ठीक है, और वो उसको प्ले करना है एकदम ऐसे आदमी का जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसमें तो उसको बिल्कुल अपना एसेंस नहीं डालना होगा, उसके बातचीत में, उसके बॉडी लैंग्वेज में। लेकिन अगर अगर वो ग्रेजुएट का ही रोल कर रहा है, तो अपनी जो एकेडमिक्स, जो एक पढ़ने के बाद जो आपके अंदर जो तरीका आता है बातचीत करने का, वो एसेंस डाल सकता है उसमें। तो डिपेंड करता है कि किस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। आपके रियल लाइफ और जो रियल कैरेक्टर है उसमें डिफरेंस दिखना है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो एसेंस नहीं डालना चाहिए आपको, लेकिन लगता है कुछ सिमिलरिटीज है आपके इमोशंस, जैसे आपने पढ़ा उसका कैरेक्टर के बारे में, तो आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हो। आप मान लो कोई लड़की है, और जब उसने पढ़ा, ब्रीफ पढ़ा कैरेक्टर, उसको लगता है कि यार तो मेरे जैसी लड़की है, मतलब उसको पढ़ने के बाद लगा कि ये तो मैं हूँ। तो उसमें वो अगर अपना एसेंस डाले तो वो पॉजिटिव तरीके से काम करेगा। लेकिन वो लगता है कि ये तो मैं हूँ ही नहीं, तो बिल्कुल अलग तरह की लड़की, तो मेरे दोस्त जैसी है, या ये तो वो मेरी दोस्त है, वो तो ऐसी, मतलब वो ऐसी है, तो फिर उसका एसेंस डालना होगा, अपने जैसा बिहेव नहीं करना होगा। तो ये डिपेंड करता है कि कैरेक्टर
और आपके बीच में दूरी कितनी है, तो आप खुद जज कर पाएंगे। मतलब कैरेक्टर पढ़ने के बाद आपको ये महसूस हो जाएगा कि मुझे एसेंस डालना चाहिए कि नहीं, मेरे जैसा है कि नहीं, जी, साइकोलॉजी। कहीं ना कहीं आपको खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने कहा हमारे पास इस मीटिंग में काफी सारे एक्टर्स हैं, तो उनका सवाल है दीप और राघव ने ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन पूछा है कि ऑडिशन के टाइम हमें काफी कम वक्त मिलता है एज एन एक्टर, कभी कभी होता है सिर्फ 1 घंटा होता है या कुछ 15-20 मिनट होते हैं, तो ऐसे समय पे क्या मोटा मोटा चीज है जो हमें ध्यान रखना चाहिए टू परफॉर्म दैट कैरेक्टर? देखिए, एक होता है ऑडिशन, तो 2-3 तरीके होते हैं। एक होता है ओपन ऑडिशन, मतलब जहाँ पे क्या होता है कि आपको कोई स्क्रिप्ट नहीं दिया जाता है, आपको कोई मोनोलॉग आप जो खुद तैयार करके लेंगे उसको बोलना होता है। अगर ऐसा ऑडिशन है तो आप इसके लिए अलग से कुछ तैयार करके रखिए, मतलब 2-3 चीज़ें आप जिस पे आपको बहुत ज़्यादा लगे कि मैं ये अच्छा कर सकता हूँ, वो तैयार होना चाहिए। अगर दूसरे तरह का ऑडिशन, जहाँ पे आपको डायलॉग मिले हुए हैं और कैरेक्टर ब्रीफिंग हुई है, तो आप जब कैरेक्टर पढ़ते हैं ना डायलॉग, तो उसमें कैरेक्टर की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसको पकड़ लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कैरेक्टर में, और फिर उस 2 मिनट या 5 मिनट जो 10 मिनट मिलता है उसको परफॉर्म करिए। मतलब बहुत ऑडिशन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आप कैनवस मत बड़ा कीजिए, बहुत छोटी सी कोई डिटेलिंग पकड़ लीजिए एक्टर की, छोटी सी डिटेलिंग उस पर फोकस करके उसको परफॉर्म कर दीजिए ऑडिशन में। क्योंकि बहुत बड़ा कहने का मतलब बहुत सब कुछ कम्युनिकेट करना चाहेंगे 2 मिनट या 5 मिनट में ऑडिशन में, तो नहीं हो पाएगा। एक्टर की कोई एक क्वालिटी या कोई एक बिहेवियर, उसको आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए, वही परफॉर्म कर लीजिए, वो क्लिक कर जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि ऑडिशन के अलावा भी एक रास्ता क्या है कि आप अपना एक ऑलरेडी एक शो रील भी बना सकते हैं। मतलब शो रील तो होता है कि आप परफॉर्म करके, एक ऐसे भी बना सकते हैं आप, अलग अलग कैरेक्टर को प्ले करके वीडियो बना के तैयार करके आप कास्टिंग डायरेक्टर को पहले से भी भेज सकते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि कास्टिंग डायरेक्टर उन वीडियोस को देख के भी रिकमेंड करता है। तो आपके पास मतलब आप चाहें तो 5 मिनट का, 6 मिनट, 10 मिनट का एक छोटा सा वीडियो बना के रखें अपना, अलग अलग कैरेक्टर को प्ले करके, और वो मेल आईडी पे मेल कर दें ऑडियंस को, या कास्टिंग व्हाट्सएप कर दें और ऑडिशन दें, और पैरेलली ये भी काम करें। ये भी बहुत बार काम आता है कि कभी कभी क्या होता है ऑडिशंस में नहीं मिल पाते हैं, तो जो उनके पास स्टॉक फुटेजेस होते हैं, मतलब जो डेटा बैंक होता है उसको भी रेफरेंस करते हैं, वो बैठ के देखते हैं। और लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि कैरेक्टर की कोई एक पर्टिकुलर चीज को पकड़िए और उसको ऑडिशंस में उसको परफॉर्म कीजिए। सब कुछ करने के बजाय छोटी सी भी डिटेलिंग पकड़िए और उसको फोकस करके ऑडिशन में वही कम्युनिकेट कीजिए। सब कुछ कम्युनिकेट तो आप नहीं कर पाएंगे 10 मिनट में या 5 मिनट। जी, दैट वाज रियली प्रिसाइज आंसर आई गेस कि आपको क्या क्या करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही उत्कर्ष का है, शायद इसको आप सर और थोड़ा समझ कर दें। इज आस्किंग व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आउटलुक और कैरेक्टर्स आउट मूवमेंट? आंखें, आईज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटलुक। मुझे लगता है कि आंखें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आपका बॉडी मूवमेंट। आंखों के बाद कोई इंपॉर्टेंट चीज होता है कि बॉडी मूवमेंट कैसे है। तो सबसे ज्यादा मतलब क्योंकि, और आंखों में तब आएगा ना जब आप कैरेक्टर आपके साइकोलॉजी में चल रहा है अंदर मन में, तभी वो आंखों में पोर्ट्रेट। आप लाख कोशिश कर लीजिए, आंखों के नहीं बदल सकते हैं आप। आंखों से एक्टिंग करना मतलब वो आपके इंटरनलाइज करेंगे तभी होगा। तो दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू एक्ट विद द आईज। और ये तभी होगा जब आपने एक्टर कैरेक्टर को इंटरनलाइज किया है, उसके पॉलिटिक्स को, उसके बिलीफ को, उसके साइकोलॉजी पे विश्वास होगा, तभी वो चीज़ आएगी। या उसके पेन को, उसके हैप्पीनेस को जब आप महसूस कर पाएंगे, कभी आंखों में दिखेगा वो। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट और मोस्ट, क्योंकि और आंखों से अगर आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो बाकी फेस अपने आप आंखों के अकॉर्डिंग कम्युनिकेट मतलब हो जाता है, वो बन जाता है। आंख एंड बॉडी लैंग्वेज, मतलब चलने का जो तरीका है, गेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसा कि हमने पहले देखा भी है और सब इस बात की तारीफ करते हैं कि इरफान खान साहब अपनी आंखों से सबसे ज्यादा अभिनय करते थे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ऋषि पूछ रहे हैं कि क्या एक डायरेक्टर अपने एक्टर को 5 Ws, यानी मैं यूं कहूं कि क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किस लिए, ये सारे क्या हमेशा डायरेक्टर अपने अभिनेता को बताता है? फिर से पूछिए एक बार दोबारा। क्या एक डायरेक्टर अपने एक्टर को
5 Ws किसी भी कैरेक्टर का हमेशा बताता है? 5W क्या होते हैं मतलब? सर व्हाई, वेयर, whom, वेयर, मतलब सब चीजें कि क्यों, किस लिए, कब, कहाँ। देखिए हर डायरेक्टर अलग अलग तरीका होता है काम करने का। बहुत बार कुछ डायरेक्टर होते हैं कि नहीं बताते हैं, वो छोड़ देते हैं कि एक्टर खुद तैयारी करे, और कुछ डायरेक्टर सब कुछ बताते हैं। तो डिपेंड करता है कि कैसे डायरेक्टर के साथ आप काम कर रहे हैं। ये मतलब बहुत ही मुझे लगता है इंडिविजुअल चीज़ है ये। जैसे एग्जाम्पल है, अनुराग कश्यप का काम करने का तरीका अलग हो सकता है, दिवाकर बनर्जी का काम करने का तरीका अलग हो सकता है, और विधु विनोद चोपड़ा का काम करने का तरीका अलग हो सकता है। तो ये डायरेक्टर पे डिपेंड करता है कि वो एक्टर पे कितना विश्वास करता है। जैसे एज ए डायरेक्टर मैं अपने एक्टर पे बहुत विश्वास करता हूँ, तो मैं छोड़ दूंगा एक्टर, मैं बस उसको एक ब्रीफिंग दूंगा कि ये एक्टर है, सॉरी ये कैरेक्टर है, और तुम तैयारी कर लो। तो वेयर, हाउ, हु, जो 5W आप जो बोल रहे हैं, तो कई बार एक्टर खुद भी तैयारी कर लेता है। तो डिपेंड करता है कि एक्टर और डायरेक्टर में केमिस्ट्री क्या है, या डायरेक्टर कितना विश्वास करता है एक्टर पे, या एज एन एक्टर आप कितना विश्वास दिला पाते हैं डायरेक्टर को, तो आप पे विश्वास आप पे छोड़ दे वो। कुछ डायरेक्टर नहीं छोड़ते हैं, कभी भी नहीं छोड़ते हैं। ऐसे आमिर खान जैसे लोग हैं, उनको बोलते हैं मिस्टर परफेक्टनेस बोलते हैं वो। उनको सब कुछ पता होना, सब कुछ वो सब ब्रीफ करते हैं वो, या अपनी फिल्म खुद ही देते हैं, डायरेक्टर को भी वो गाइड करते हैं। तो अपना अपना तरीका है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है। कहीं ना कहीं आप जिस डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं हाँ उनके प्रोसेस पर भी बिल्कुल, ये चीजें डिपेंड हाँ करती हैं। उन पे डिपेंड करता है, उनके हिसाब से काम करना चाहिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मृति आनंद जी का। शी इज आस्किंग कि कभी कोई एक्टर जब कैरेक्टर प्ले करता है तो कहीं ना कहीं हमारी फीलिंग्स और उस कैरेक्टर की फीलिंग्स में मिक्स होने लगती है, तो उसको अवॉइड कैसे किया जाए? वही, जितना ज़्यादा आप उस करेक्टर के साथ समय बिताएंगे, जितना ज़्यादा उसके बारे में पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा सोचेंगे, मतलब खूब सारा समय बिताइए उस करेक्टर के साथ, और उसके साइकोलॉजी को फील कीजिए। मतलब मैंने बोला था ना कि आप एक्टिंग केवल 4 घंटे 5 घंटे के लिए मत कीजिए, आप एक्टर की जिंदगी जिए। आप एक्टर हैं आप, जैसे डॉक्टर होता है ना, आप देखते हो कि डॉक्टर की जिंदगी जीता है। मतलब घर में भी होता है तो वो ध्यान देता है कि उसका मतलब बच्चा बॉयल पानी पिए। मतलब अपना प्रोफेशन हमेशा लगाता है, वो हर चीज में डॉक्टरी दिखाएगा वो। तो आप एक्टर हैं तो आप एक्टर की जिंदगी को जिए। जैसे एक टीचर होता है, आप देखेंगे टीचर हमेशा बच्चों को डिसिप्लिन में रखने की कोशिश करते हैं, मतलब हमेशा मतलब कैरेक्टर में रहते हैं वो। तो एज एन एक्टर आपको भी एज ए एक्टर जीना होगा। जितना ज्यादा जिएंगे आप, उतनी आसानी होगी कि अपने और अपने कैरेक्टर के बीच में दूरी बनाए रखें। मतलब एक्टर एक जिंदगी है, मतलब उसको जिए, आप एक प्रोफेशन है तो आप उसको जीना सीखिए। एक्टिंग कीजिए आप हमेशा, मतलब जहाँ लगे। जी सर, इसी कड़ी में एक ध्रुवी का सवाल है। ध्रुवी जी कह रही हैं कि आपने जैसा कहा कि अगर हम ज्यादा अटैच नहीं है कैरेक्टर से तो वो फेक लगने लगता है, तो ऐसी क्या ऑब्जर्वेशन होगी जो हम जिससे हमें पता लग सके कि हम फेक कर रहे हैं या नहीं? ये फेक कर रहे हैं कि नहीं, ये आप करते समय शायद नहीं पता चलता है जनरली। आप उसको जब देखेंगे ना तो तुरंत पता चल जाएगा। अगर आप इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि वीडियो शूट कीजिए अपना, और खुद देखिए, आपको मालूम चल जाएगा क्या प्ले कर रहे हैं। करते समय शायद ना मालूम चल पाए, क्योंकि जब तक थर्ड आई से नहीं देखेंगे, तो आप रिकॉर्ड कीजिए, खूब सारा परफॉर्मेंस अपना रिकॉर्ड करते रहिए। आप तो मोबाइल है, मोबाइल से रिकॉर्ड कीजिए। कोई भी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो मोबाइल से रिकॉर्ड कीजिए, आप उसको देखिए, और फिर आपको पता चल जाएगा कि वह मतलब पवन कर रहा है या विनय है, वो समझ में आ जाएगा कि फेक है कि नहीं। या फिर लोगों की राय भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली खुद पता चल जाता है। बहुत बेसिक चीज़ है, तुरंत मालूम चल जाता है। ये ऐसी चीज़ है कि फेक कर रहे हैं कि नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको तुरंत मालूम चल जाएगा। चाहे आप अपने आप को ये बताएं नहीं कि मालूम चल रहा है। कभी कभी हम अपने आप को फेक करने लगते हैं, हमें पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं लेकिन मानते नहीं है। ये आपको मालूम चल जाता है कि नहीं, ये सही नहीं किया है। जी कहीं ऑनेस्ट ना कहीं होने आज का जी कहीं ना कहीं आज का एक्टर जो है काफी प्रिविलेज्ड है और उसको इस चीज का फायदा भी उठाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बहुत अब तो बहुत मतलब मैं नहीं बोलूँगा आसान तो नहीं है, उतना ही मतलब हम्म, मेहनत उतना ही करना है। हाँ लेकिन चीज़ें खुल गई हैं, अपॉर्चुनिटीज खुल गई जी हैं। सर एक क्वेश्चन हमारी मूवी से ही आया। ये क्वेश्चन सौम्या तिवारी जी ने पूछा है। वो पूछ रहे हैं कि सांड की आंख जब मूवी रिलीज हुई थी तो एक डिबेट था हमारे सामने। कुछ लोग कह रहे थे कि हमें थोड़े और ओल्ड या उम्र दराज एक्टर्स कास्ट करने चाहिए थे, शायद वो परफॉर्मेंस और अच्छी कर देता उस उन कैरेक्टर्स की। और कुछ कह रहे थे कि कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस मैटर करती है और
एक्टर की एज नहीं जब वो परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, ये ना, ये दो तरह का सवाल है। एक तो एक्टिंग लेवल पे भी और एक पॉलिटिकल क्वेश्चन भी है ये। वो वैसे ही बोल रहा था कि आप गोरे आदमी को लेके सांवला रोल करा रहे हैं, वैसा ही है ये। आप उसको मेकअप कर रहे हैं सांवला। कि अगर हमारे इंडस्ट्री में, अगर आप मान लीजिए एक 30 साल के आदमी से 60 साल का रोल कराएं, तो यहाँ पे दो एक अपॉर्चुनिटी की बात भी तो है। फिर 60 साल का एक्टर क्या करेगा? उसको भी तो काम चाहिए ना। तो ये एक सवाल नैतिकता का भी, एथिक्स का भी सवाल है, पॉलिटिकल सवाल भी है ये। कि जैसे मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पे ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि आप अगर सेम वैसा ही है कि आप, मुझे अगर कैरेक्टर सांवला है मेरा, तो मैं गोरे आदमी को क्यों कास्ट करूँ? मतलब जहाँ पे जरूरत है मुझे वैसे ही कास्ट करूँ। तो 60 साल का कैरेक्टर और 60 साल का एक्टर है और वो फिट है मेरे कैरेक्टर में, तो मैं, मेरा मानना है कि मैं प्रेफरेंस दूंगा 60 साल की। लेकिन ये डायरेक्टर का अपना चॉइस है। मतलब ये जो जिन्होंने सवाल पूछा है, मतलब उनकी बात बिल्कुल सही है कि एक्टर परफॉर्मेंस भी इम्पॉर्टेंट है। अगर 30 साल का लड़का 60 साल का रोल कर ले रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये कई बार उसको भी मौका मिलना चाहिए 60 साल के रोल प्ले करने का। लेकिन बैलेंस की भी जरूरत है। कई बार 60 साल वाले को भी ये काम करने का मौका मिलना चाहिए। आपने देखा होगा नीना गुप्ता सर ने, जैसे अनुपम खेर साहब संघर्ष में। बिल्कुल हाँ, सारांश सारांश में, सारांश जो फिल्म थी अनुपम खेर की ना, उसमें उन्होंने बहुत बूढ़े का रोल किया था। तो कर सकते हैं बिल्कुल, एक्टर की कैपेबिलिटीज पे, पोटेंशियल है एक्टर के अंदर, कर सकता है। लेकिन फिर इसमें क्या होगा ना, थोड़ी ये बेईमानी भी हो जाएगी। केवल जो पुराने जो एक्टर हैं, जैसे नीना गुप्ता ने भी ट्वीट किया था 4-5 साल पहले कि कोई मुझे भी काम दे दो। उसके बाद उनको देखिए कितना काम मिल रहा है ना। जब पहले क्या होता था कि उनकी जगह बहुत सारे, उनके जो रोल मिलना चाहिए था वो नए लोग कर रहे थे। लेकिन ये जब उन्होंने ट्वीट किया तो बहुत सारे लोगों को समझ में आया कि नहीं, बहुत सारे एक्टर हैं जो, जिनको काम की जरूरत है, काम मिलना चाहिए, जो अच्छे एक्टर हैं। तो एक कला भी है, कला तो है ही है, लेकिन ह्यूमैनिटी भी तो है ना, मानवता भी तो है। आप इस पे तो सोचिए कि पॉलिटिक्स भी है, वो भी इम्पोर्टेंट है कि सबको मतलब काम मिलना चाहिए। तो ये डायरेक्टर, इंडिविजुअल डायरेक्टर पे डिपेंड करता है। और मुझे लगता है कि इनजस्टिस नहीं है अगर 30 साल का कैरेक्टर, सॉरी 60 साल का कैरेक्टर कोई 30 साल का लड़का कर रहा है, तो वो भी इनजस्टिस नहीं है। और 60 साल का आदमी 60 साल का कैरेक्टर कर रहा है, वो भी इनजस्टिस नहीं है। ये बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि पॉलिटिकल और नैतिकता का सवाल है। जी सर, हमने जैसे वेस्टर्न टेक्निक्स, यूरोपियन टेक्निक्स की बात करी, तो इसी में स्मृति जी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि, और ये आजकल काफी उसमें प्रचलन में भी है, मेथड एक्टिंग जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें जाना ही बहुत बड़ी बात है। तो हाउ टू डिसोसिएट फ्रॉम दैट कैरेक्टर? अगर कोई एक्टर मेथड एक्टिंग से किसी कैरेक्टर को पकड़ता है या उसमें घुसता है, तो और क्योंकि वो एक मेथड एक्टिंग है, कहीं ना कहीं वो चीज बहुत ज्यादा होती है कि आप अपने आप से बहुत अलग हो जाते हैं। तो हाउ टू डिसोसिएट विद इट? ये बहुत ही मतलब कभी बहुत मुश्किल भी होता है जब कभी मेथड एक्टिंग कर रहे हैं आप, और कैरेक्टर बहुत ही एडवर्स है, बहुत ही मतलब खासकर जब बहुत नेगेटिव कैरेक्टर है या बहुत ज़्यादा साइको कैरेक्टर है, उसको करने के लिए आप मेथड एक्टिंग करते समय पूरी तरह से आप उस कैरेक्टर में चले गए हैं, तो बाहर आने का प्रोसेस भी उतना ही लंबा होता है जितना अंदर जाने का। तो बहुत टाइम टेकिंग, कभी बहुत बार कभी मेडिटेशन करना पड़ता है, योगा, म्यूजिक सुनना। तो ये अलग अलग एक्टर अलग अलग तरीके से काम करते हैं। लेकिन हाँ, ये बहुत मतलब ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है डीएसोसिएट होना भी। जितना ज़्यादा अंदर जाना होता है ना, मेथड एक्टिंग करते समय आप एक्टर में जाते हैं, उतना ही लंबा प्रोसेस आने वाला भी होता है। तो उसको भी आप इंपॉर्टेंस दीजिए। क्योंकि कैरेक्टर ने प्ले किया और प्ले खत्म होने के बाद अगर आप उस कैरेक्टर में अंदर घुस गए तो बाहर निकलने वाले प्रोसेस को भी आप उतना सीरियसली लीजिए जितना अंदर जाने वाले प्रोसेस को आपने लिया था। अदरवाइज वो फिर आप डिल्यूजन हो जाएंगे, तो डिल्यूजन तो दिखेगा आपके चेहरे पे, मल्टी पर्सनालिटी टाइप का बिहेव करने लगेंगे। तो बस इस बात को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है कि बाहर आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता है कि बाहर आना इंपॉर्टेंट है, तो बाहर आ जाएंगे आप। ये इस बात को एक्नॉलेज करना होगा कि बाहर जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट अंदर जाना था, उतना इंपॉर्टेंट बाहर आना भी है। अब उसके लिए आप अलग अलग काम कर सकते हैं, आप मेडिटेशन, योगा, म्यूजिक, या फिर उसका अपोजिट जो आप हैं उसको ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रोसेस अलग हो सकता है। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलम जी का।
शी इज आस्किंग कि जब एक स्क्रिप्ट में कुछ छोटे कैरेक्टर्स होते हैं जैसे, और उनके लिए ऑडिशंस के लिए एक्टर्स के पास स्क्रिप्ट आती है, तो स्क्रिप्ट डायरेक्टर से कास्टिंग डायरेक्टर फिर एक्टर्स के पास आती है और एक्टर उसको प्रिपेयर करता है, तो इस जर्नी में वो चीज़ कैसे चेंज होती है कि वो जो पार्ट है कैरेक्टर का कैसे बदला, और वापस जब ये जाता है तो एक एक्टर को क्या ध्यान रखना चाहिए कि डायरेक्टर क्या मांग रहा है अगर वो कैरेक्टर बहुत छोटा स्क्रिप्ट। जैसे मैंने बोला कि बहुत बार क्या होता है कि कैरेक्टर की जब ब्रीफिंग आती है आपके पास या डायलॉग्स आते हैं, तो कैरेक्टर छोटा कैरेक्टर है तो बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं आपको। जैसे वो कहाँ का है, कौन सी भाषा बोलेगा या क्या बोलेगा, अगर आपको ब्रीफिंग नहीं दी गई है तो यहाँ पे आप कोई रेफरेंस ड्रॉ करने के लिए खुद फिक्शन कीजिए। हवा में एक्टिंग मत कीजिए, आप खुद फिक्शनलाइज कीजिए। तो कैरेक्टर आपके दिमाग में होना चाहिए, होगा आपको पता होना चाहिए कम से कम। और डायरेक्टर ने, कास्टिंग डायरेक्टर ने नहीं बताया है एक्टर के बारे में, तो आपको ये फिक्शन करने की लिबर्टी है, प्रिविलेज है, और आप उसके हिसाब से एक्टिंग कीजिए। तो ऐसे नहीं जाके आप परफॉर्म कर दीजिए, आपको पता होना चाहिए वो दिल्ली का है, बिहार का है, कितना पढ़ा लिखा है, वो कैसा है, ये आप अपने दिमाग में फिक्शन कीजिए। और फिर एक किसी रेफरेंस को लेकर जब एक्टिंग करेंगे ना, तो वो किसी न किसी कैरेक्टर के करीब होगा। तो डायरेक्टर को ये कम से कम एहसास हो जाएगा कि ये लड़का कर सकता है। किसी ने एक कैरेक्टर को तो पकड़ा है इसने ना, तो वो दूसरा कैरेक्टर भी पकड़ सकता है। लेकिन आप जब हवा में एक्टिंग करेंगे ना, तो वो इतना नकली लगेगा कि डायरेक्टर विजुलाइज भी नहीं कर पाएगा कि आप मतलब दूसरा कैरेक्टर भी परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं। वो ये तो पता चल जाएगा ना कि आप किसी कैरेक्टर को लेकर जब एक्टिंग करेंगे ना, तो आप ये पता चल जाएगा ये बंदा एक्टर है, इसको एक्टिंग आती है। जब ये पता चल जाएगा डायरेक्टर को, तो फिर वो कास्ट कर लेगा, चाहे वो कैरेक्टर दिल्ली का है लेकिन आपने फिक्शन कर लिया है बिहार का, लेकिन ये तो कम्युनिकेट हो जाएगा ना उसको कि बंदा एक्टर है ये। तो जब आपको ब्रीफिंग नहीं मिली है तो खुद फिक्शन कर लीजिए, क्योंकि रेफरेंस बहुत जरूरी है। बिना रेफरेंस की एक्टिंग करेंगे तो वो हवा में दिखेगा, मतलब आपको खुद नहीं पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, केवल डायलॉग बोल रहे हैं आप, तो वो नकली लगेगा। तो आपको यहाँ पे लिबर्टी मिलती है, आप खुद फिक्शन कर लीजिए कि कितना पढ़ा लिखा है, कैसा है, कहाँ से आता है, किस बैकग्राउंड का है, जितनी जरूरतें हैं वो फिक्शन कर लीजिए और किसी एक रेफरेंस को लेकर आप परफॉर्म कीजिए। इट विल वर्क, ये कम्युनिकेट हो जाएगा कि एक्टर है बंदा, ये कर सकता है। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रथम का है और अश्विनी का, क्योंकि आजकल हम कोरोना टाइम में तो बहुत ऑडिशंस ऑनलाइन हो रहे हैं, तो ऑनलाइन ऑडिशंस के टाइम एक एक्टर को किन चीज़ों का ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए। और जैसे कि ऑनलाइन ऑडिशंस के लिए बहुत स्पेशली कहा जाता है कि अगर आप इस साइड से हैं, मतलब लाइक साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया या पर्टिकुलर स्टेट से हैं, तो क्या इस तरीके से सही में कास्टिंग हो पाती है या नहीं। ऑनलाइन ऑडिशन में क्या होता है कि मुझे लगता है कि डेटा बहुत आ जाता है। मतलब एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है, जैसे एक कैरेक्टर के लिए ढूंढ रहे हैं और ऑनलाइन ऑडिशन के लिए कॉल गया है, बहुत सारा क्लिप आ जाता है, बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं एक्टर के लिए। तो शॉर्ट लिस्टिंग जब होती है तो उसमें मुझे लगता है कास्टिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ है ऑनलाइन ऑडिशन होने के बाद। एक्टर के लिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं। मतलब आप कैमरे के सामने ही परफॉर्म करना होता है, वो कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहा होता है और कास्टिंग डायरेक्टर घर जाके कैमरे मतलब जो रिकॉर्ड हुआ वही देखता है। तो एक्टर के लिए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आप जब ऑनलाइन ऑडिशन देते हैं या फिर क्लिप बनाकर भेजते हैं, तो कास्टिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर के पास तो वैसे ही पहुंच रहा है ना, जैसे वो पहले भी ऐसे ही पहुंचता था। ऑडिशन जब होता है तो वो भी कैमरे के सामने ही होता है, फिजिकल ऑडिशन भी कैमरा लगा होता है, वहाँ जाकर परफॉर्म करते हैं। और ऑनलाइन ऑडिशन में आप कैमरे के सामने ही कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा इफेक्ट कास्टिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर पे पड़ा है। ऑनलाइन ऑडिशन बहुत एक्टर के लिए बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, आप वैसे ही उसको मान के चलिए कि आप रियल ऑडिशन ही दे रहे हैं। सर थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्ञानेश का है, ये पूछ रहे हैं कि शूटिंग के वक्त एक एक्टर अपने आप को कैरेक्टर में कैसे होल्ड करे, हाउ टू होल्ड योरसेल्फ व्हाइल शूटिंग, और इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। जो साइकोलॉजी है, जो आप प्ले कर रहे हैं करेक्टर, शूटिंग के दौरान आप कोशिश कीजिए, मतलब मेथड एक्टिंग नहीं भी कर रहे हैं तो उस करेक्टर में रहने का कोशिश कीजिए शूटिंग के दौरान। जैसे थिएटर कर रहे हैं आप, वर्कशॉप वगैरह कर रहे हैं थिएटर का, 10 दिन का वर्कशॉप है तो कम से कम 10 दिन उस करेक्टर में रहिए। शूट पे है, 15 दिन का शूट है तो 15 दिन उस करेक्टर में रहिए।
और कैरेक्टर में रहने का मतलब कि उसके बॉडी लैंग्वेज को फॉलो कीजिए, कोशिश कीजिए वैसे कपड़े पहनने का, कॉस्ट्यूम भी, मतलब सिनेमा की बात करूँगा तो आप उसी कॉस्ट्यूम में रहने की कोशिश कीजिए, मतलब उसी तरह के कॉस्ट्यूम में, क्योंकि कंफर्टेबल तभी हो पाएंगे आप। जैसे मान लीजिए आप जीन्स पहनते हैं और एक्टर आपका नॉर्मल पैंट पहनता है, ट्राउजर पहनता है, तो ट्राउजर में आप कंफर्टेबल होने के लिए बहुत सारे, मतलब हमेशा ट्राउजर पहनिए आप शूट पे। उस तरह का आप टी शर्ट पहनता है कैरेक्टर, तो टी शर्ट पहन के रहिए, आप शर्ट पहनता है तो शर्ट पहन के रहिए। उस साइकोलॉजी को एटलीस्ट जब तक शूटिंग चल रही है तब तक उस कैरेक्टर में रहना चाहिए। और कोशिश, मतलब मुझे लगता है मतलब जितना ज़्यादा हो सके आप रहिए, कोशिश करना चाहिए। खाना पीना भी वैसे ही खाना चाहिए जो आपका कैरेक्टर खाता है, कोशिश करना चाहिए इंसान एक्टर को उस तरह के खाने पीने खाए, तो उससे मदद मिलती है, मतलब कॉन्फिडेंस दिखेगा आपके चेहरे पर। जितना ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे उसके प्रॉप से, जैसे जिस घर में कैरेक्टर रह रहा है, अगर वो रियल लोकेशन है तो कोशिश कीजिए कि उस घर में ज़्यादा समय बिताएं आप, जहाँ पे आपको बैठ के एक्टिंग करनी है। आप मतलब शूट के, जब शूट नहीं भी चल रहा हो तो वहाँ पे बैठने की कोशिश कीजिए, उसके स्पेस से कंफर्टेबल होइए। होता है कि जैसे आप बैठे हैं कैरेक्टर और सीन है कि घर को देखना है, तो आप अचानक किसी नए घर में बैठा दिया जाए, आप जब देखेंगे ना तो देखने का तरीका बहुत अलग होगा जो आदमी रोज अपने घर को देखता है उसके घर का तरीका। तो ये चीज़ मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ। तो अब उस स्पेस में बैठना बहुत जरूरी है, स्पेस में रहना जरूरी है, तब वो नहीं लगेगा कि नया है। अदरवाइज आप देखेंगे तो आपकी आंखों से मालूम चल जाएगा कि ये इस घर में नहीं रहता है, केवल शूटिंग के लिए यहाँ पे आया है। तो ये मतलब चीजें हैं जो आप रह सकते हैं जी। सो ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स वी आर मूविंग टुवर्ड्स एंड, और ये लास्ट 2 क्वेश्चंस होंगे जो मैं अगले क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। सर, प्रथम ने पूछा है कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कुछ ब्रीफ नहीं करते और ऑन सेट आपको ऐसा कैरेक्टर छोड़ देते हैं और टेक्निकल टीम पे छोड़ देते हैं, तो सारा दामोदरा सारा एक्टर पे होता है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। फिर वही बात आ गई कि अगर बहुत ज़्यादा ब्रीफिंग नहीं मिली है आपको तो खुद आपको होमवर्क करना होगा। यानी कि डायरेक्टर ने आप पे विश्वास किया है, या डायरेक्टर चाहता है कि आप खुद उसको कुछ नया ला कर दें। उसको बस पता है कि डायरेक्टर को कि उसके दिमाग में है कि उसको क्या चाहिए, लेकिन उसने आपको ब्रीफ नहीं किया बहुत ज़्यादा, अब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, तो आप उसको बहुत एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए कि आपको बांधा नहीं गया है, आपको खुला छोड़ दिया गया है। तो आपको इसमें ना और ज़्यादा होमवर्क करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसा निकाल कर दीजिए, ऐसा करके दीजिए जिसमें डायरेक्टर को लगे कि हाँ किया है आपने। और कभी बहुत सारे इसमें इसी के क्रम में बहुत सारे बार क्या होता है, डायरेक्टर डायलॉग भी नहीं देते हैं, इंडिकेटिव इन रेफरेंस डायलॉग बोलते हैं कि इस तरह की तुम्हें बात करनी है, सिचुएशन बता देंगे कि ये सिचुएशन है, अब तुम बात करो। तो उस समय काम आएगा कि आपने कितना पढ़ा है, कितना मतलब कितना जानते हैं आप चीज़ों के बारे में। तो ये इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह, ये एक मौका बहुत कम मिलता है एक्टर को, और ये मिलता है तो समझिए कि बहुत आप खुश नसीब हैं, ऐसा मौका मिला आपको कि खुला छोड़ दिया, आपको बांधा नहीं गया है कि ऐसे ही नहीं। आप एज एन एक्टर आपके पास संभावनाएं हैं, तो बहुत ज़्यादा होमवर्क कीजिए। मतलब समझ लीजिए कि चैलेंज है, मतलब खुश कर देना है डायरेक्टर को, या फिर या अपने आप को खुश कर लेना है। जी। सो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारे इस सेशन का। पीयूष जी पूछ रहे हैं, क्या कैरेक्टर के साधारण भाव पर अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र प्रभाव डालते हैं, या ये पर्सन टू पर्सन भी डिफर करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस? एक बार फिर से पूछना पड़ेगा आपको, समझ नहीं आया। सर, पीयूष पूछ रहे हैं, क्या कैरेक्टर के साधारण भाव पर अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र प्रभाव डालते हैं, या ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस? इसमें दोनों चीज इफेक्ट करती है, दोनों चीजें पर्सन टू पर्सन है। मतलब डिवीजन करें हम कि कोई एक सिचुएशन में एक आदमी कैसे बिहेव करेगा, तो पहला डिवीजन होगा कि वो आदमी है कहाँ का, उसकी ज्योग्राफी, ये पहला डिवीजन होगा। दूसरा डिवीजन इंडिविजुअली कैसा है वो, उसका किस क्लास से आता है, इंडिविजुअल भी प्लस ज्योग्राफी भी। तो पहला जो डिवीजन होगा, सबसे बड़ा डिवीजन ज्योग्राफी होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि कोई कैरेक्टर है, तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि वो राजस्थान का है या महाराष्ट्र का है। ठीक है, पहला डिवीजन ये हो गया, बेसिक डिवीजन ज्योग्राफी। फिर महाराष्ट्र और राजस्थान जब मालूम चलेगा, अब आपको मालूम चलेगा राजस्थान है,
तो फिर वो इंडिविजुअल कैसा है, फिर इंडिविजुअल डिवीजन आता है, वो खेती करता है या नौकरी करता है या फिर राजस्थान के किस हिस्से से आता है या फिर किस किस क्लास से बिलोंग करता है। तो बड़ा डिवीजन जो है वो ज्योग्राफी है, और सब डिवीजन जो है, सब डिवीजन तो बहुत सारे होंगे, तो आप करते जाइए, जितना ज़्यादा करते जाएंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी और इंडिविजुअल। जी, so with this we end our Q&A session round। और सर जैसा कि मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ काफी लोगों ने आपको शुक्रिया, थैंक यू बोला है। रंजीता जी, स्मृति जी, मीनाक्षी, मीतू, प्रथम, थैंक्स अ मुझे लॉट लगता है सर। कि कुछ तो फायदा, मतलब क्या, मतलब कुछ तो मिला होगा आपको, जानकारी मिली कुछ? जी सर, काफी कुछ। एज एन एक्टर मुझे भी काफी मिली और मैंने भी काफी सारे नोट्स बना लिए। अच्छा, मुझे मूविंग बहुत ऑन। ज़्यादा पता नहीं है, मैं भी सीख रहा हूँ आप लोग की तरह, तो जितना मुझे पता था मैं अपना अनुभव बांटा है। तो हम, मुझे नहीं लगता मैं कुछ सिखा रहा था, मैं हमेशा सोच रहा मैं कुछ बता रहा हूँ, मुझे लगा मैं अपॉर्चुनिटी है कि कुछ बताऊँ आप लोगों को, क्योंकि यहाँ वन वे इंटरेक्शन है। अदरवाइज अगर हम सामने सामने होते तो मैं चाहता कि आप लोग भी उतना ही बोले जितना मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे इसमें दिख नहीं रहे हैं, 4 ही 5 लोग दिख रहे हैं, तो सब लोग नहीं दिख रहे हैं। जी, आप आई वुड रिक्वेस्ट आप सभी अपना कैमराज ऑन कर लें जिससे हम आप सबको देख पाए। मूविंग ऑन, आई वुड लाइक टू इनवाइट our founder and director Mr. Sandeep Rawat to give vote of thanks. So please आप भी डिजिटल स्टेज पे आ जाइए और 2 शब्द रखिए। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच पवन भाई, आपने समय निकाला और आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखो कुछ, मैं ये आप जो लोग आज श्रोता है उनको भी कहूंगा कि मैं अक्सर ये मानता हूँ कि हम लोग कई बार थिएटर में बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं, है ना। मेरे जैसे दाढ़ी वाले थिएटर वाले कई बार हम रिजिड हो जाते हैं कि थिएटर थिएटर होता है, फिल्म फिल्म होती है। मैं शायद ऐसा नहीं मानता हूँ कि थिएटर एक ट्रेनिंग है, और एक ऐसी ट्रेनिंग है, बेहतर इंसान बनने की ट्रेनिंग है, खुद को समझने की ट्रेनिंग है, खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की ट्रेनिंग है, आसपास की चीजों के प्रति संवेदनशील होने की ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग, जो बातें मैं बोल रहा हूँ, शायद ये वो क्वालिटीज है जो हर इंसान में होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि एक अभिनेता में। इसलिए कहा जाता है कि इस ट्रेनिंग को हर किसी को इस ट्रेनिंग से गुजरना चाहिए, बच्चों को करना चाहिए, हर किसी को थिएटर जिंदगी में एक बार करना चाहिए, एक्टर नहीं, खुद को समझने के लिए, खुद एक बेहतर इंसान बनने के लिए। और जब ये ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग मैंने सीखी, हो सकता है इस ट्रेनिंग का मोटिव सिर्फ एक बेहतर इंसान बनना था, या इस ट्रेनिंग का मोटिव सिर्फ खुद को समझना था। अब इस ट्रेनिंग के बाद मेरे ऊपर ये निर्भर करता है इस ट्रेनिंग को मैं कहाँ लेकर जाता हूँ। क्या इस ट्रेनिंग को मैं थिएटर में लेके जाना चाहता हूँ, मैं एक थिएटर आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, थिएटर लिखना, नाटक लिखना चाहता हूँ, रंग निर्देशक बनना चाहता हूँ, या मैं इस ट्रेनिंग को फिल्मों में लेकर जाना चाहता हूँ और सिर्फ फिल्म करना चाहता हूँ, या हो सकता है मैं फिल्म भी करना चाहता हूँ, टाइम मिलने पर थोड़ा थिएटर भी करना चाहता हूँ। तो सारा खेल चॉइसेस पे आ जाता है। हमें ऐसे कई अभिनेता देखने को मिले हैं जो सिर्फ थिएटर करते हैं, हमें ऐसे कई अभिनेता देखने को मिले जो सिर्फ फिल्म करते हैं, हमें ऐसे कई अभिनेता देखने को मिले जो फिल्म और थिएटर दोनों करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कुल मिलाकर सारी चीजें चॉइसेस पे आ जाती है कि आपको कहाँ, और फिर वो होने लगता है जब आप सिनेमा बहुत ज्यादा करते हैं, तो आपको लगता है कि क्योंकि सिनेमा शॉर्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, थिएटर एक कंप्लीट कंटिन्यूटी है, एक घंटे की कंटिन्यूटी। तो कई बार एक्टर इस लालच में भी थिएटर करते हैं वापस कि नहीं, फिल्म में तो कर रहा हूं मैं, लेकिन वो जो होता है ना कि 1 घंटा पूरी तरह किरदार में बैठे रहना है, यहाँ तो ऐसा हो सकता है क्योंकि फिल्म की डिमांड थी कि प्रोडक्शन ने बोला कि भाई हमने ना क्लाइमेक्स जहाँ पे शूट होना है ना वो सस्ता मिल रहा है, तो हमने क्लाइमेक्स शूट पहले कर रहे हैं और आपका स्टार्टिंग बाद में करेंगे। तो एज एन एक्टर आपका सारा क्राफ्ट उल्टा हो जाएगा कि अब आपको जो पूरी जर्नी थी, जो आपको पहले शुरुआत से लेकर, हो सकता है अगर फिल्म सीधे ऑर्डर में शॉर्ट होती तो शायद आप बिल्ड करते, ना आई हैव टू बिल्ड राइट नाउ, क्योंकि बुक हो चुका है। प्रोड्यूसर्स ने डायरेक्टर को बोल दिया कि सर प्लीज मैनेज कर लो ना, आप तो समझ रहे हैं सर, रिकॉर्डिंग पैसा ज्यादा लग जाएगा, एवरीथिंग इज, मतलब शूटिंग में हर चीज देखा जाता है, एक एक रुपया देखा जाता है। तो डायरेक्टर बोला ठीक है कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह की ट्रेनिंग की बातचीत है। बाकी जब पवन भाई से वक्तव्य शुरू हुआ था, देखिए आज हम जो बदलता हुआ सिनेमा देख रहे हैं, मैं इसे बस एक चीज ऐड करना चाहूंगा, बदलता हुआ सिनेमा आज नहीं बदला है, ये बदलता हुआ सिनेमा बहुत वक्त से बदल रहा है, जिसमें बहुत लोग शामिल है। मैं कहूँगा पवन भाई जैसे डायरेक्टर भी शामिल है, जो शायद उनकी फिल्मों के अंदर उन्होंने अभिनेताओं को चुना, सुपरस्टारों को नहीं चुना।
मैं देखता हूँ कि, और वो फर्क दिखता भी है। मैं पवन भाई की फिल्म लाइफ ऑफ एन आउटकास्ट को कोट करना चाहूंगा, और आप जरूर नेटफ्लिक्स पे जरूर देखें फिल्म। उसमें रवि जी, मैं पूरा नाम इस वक्त भूल रहा हूँ, रवि जी उसमें लीड अभिनेता है जी। रवि साह रवि, हाँ साह रवि साह उसमें FTI से, लीड, FTI से। हाँ लीड नेता है। उनकी परफॉर्मेंस, उससे पहले मैं रवि जी को, रवि भाई को शायद इतना बेहतर नहीं जानता था, लेकिन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उस फिल्म में। मुझे लगता है कि शायद एक हर अभिनेता एक ऐसी फिल्म का इंतजार कर रहा होता जहां वो अपना पूरा क्राफ्ट निकाल दे। मुझे लगता है कि शायद रवि भाई के लिए वो फिल्म थी। और फिर हम उन्हें रात अकेली में देखते हैं, जबकि रात अकेली में उनका एक भी डायलॉग नहीं है पूरी फिल्म, मुझे कोई डायलॉग याद नहीं आ रहा। पहले शॉट से वो जो मर्डर करने वाला जो उनका कैरेक्टर है, और वो बीच बीच में आता रहता है। मुझे जहां तक वो फिल्म में याद आ रही, मैंने देखी तो सिर्फ चिल्लाने का शॉट है कि रात में जब लास्ट में उनको आग लगती है और वो चिल्लाते हैं, उसके लिए कोई डायलॉग नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मैं परफॉर्मेंस में ग्राफ देखता हूँ, मुझे लगता है कि इसी तरह एक जिक्र मनोज वाजपेयी साहब का हुआ, ठीक है, कि इंडस्ट्री को पहला सांवला एक्टर मिल गया है। पवन भाई ने किस्सा शेयर किया, तो मुझे लगता है कि ये बहुत सालों से होता आ रहा था, जिसकी डिमांड थी। हम लोग कह सकते हैं कि शायद वेस्ट में ये कल्चर बहुत पहले आ गया फिल्मों में, शायद वेस्ट के अभिनेताओं में या डायरेक्टरों में पहले आ गया। और एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी, मुझे लगता है शायद वो बात सुन के समर्थ के सभी एक्टर्स खुश हुए होंगे, कि जब वेस्टर्न अप्रोचेस के बात हुआ कि वाई वी नीड वेस्टर्न अप्रोचेस। मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं जो स्टैनिस्लाव्स की वर्कशॉप ले चुके हैं, शायद वो को रिलेट कर पा रहे होंगे कि वाई स्टैनिस्लाव्स की वर्कशॉप में मैं वेस्टर्न सिस्टम की बात करता हूँ। दे आर टू सिस्टम मेजरली, इंडियन सिस्टम एंड द वेस्टर्न सिस्टम। ऐसा कहीं नहीं है कि ये नहीं कि निर्देशक के तौर पर पवन भाई ने इंडियन सिस्टम को डिग्रेड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप उसे पढ़ो, हो सकता है आपके पास उसका नॉलेज हो, लेकिन गो फॉर वेस्टर्न सिस्टम टू। यू हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज सिनेमा बदल रहा है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वेस्टर्न सिस्टम्स में क्या टेक्निक्स थी, क्योंकि जिस तरह का सिनेमा बन रहा है, आप सभी लोग याद रखिए, इस सिनेमा में नए डायरेक्टर्स उभर रहे हैं, क्योंकि अब डायरेक्टर रिस्क ले पा रहे हैं। पहले जब पवन भाई ने नया पता बनाई थी, उस वक्त उस किस्म के डायरेक्टर्स भी कम थे, पवन भाई जैसे डायरेक्टर्स भी बहुत कम थे, क्योंकि रिस्क नहीं ले पाते थे। तो पवन भाई ने एक नया तरीका निकाला कि क्राउड फंड करेंगे, क्योंकि रुकना नहीं था। आज हमें दिखने लगा है ओटीटी प्लेटफॉर्म की वजह से, हमें एक नया दौर दिखने लगा कि हम अभी बहुत सारे अभिनेता उभर गए हैं। हमें ऐसे अभिनेता दिखने लगे कि यार ये अभिनेता तो गायब हो गया था, फिर से काम मिल गया। इसमें नीना गुप्ता जी का जिक्र आया पवन जी के वक्तव्य। तो मुझे लगता है कि पवन जी जैसे निर्देशक, अब पहले शायद संख्या कम थी, अब संख्या बड़ी है। पर हमें इन निर्देशकों के लिए अगर हम काम करना चाहते हैं एक अभिनेता के तौर पर, तो अभिनेता को भी तैयार होना होगा, क्योंकि सिनेमा बदल रहा है, ठीक है। और अंत में बस खत्म करते हुए ये कहूंगा कि एक्टर बनने की कोशिश करनी है। मतलब ये फितूर दिमाग से निकाल देना है कि फिल्म एक्टर एंड थिएटर एक्टर अलग होता है। एक अच्छा अभिनेता वो होता है जो अपने टूल्स को जब सिनेमा करे तो सिनेमा के हिसाब से ढाल ले, और जब फिल्म करे तो फिल्म, जब नाटक करे तो नाटक के हिसाब से ढाल ले। मतलब कोई नासिर साहब के कान में जाके नहीं बोलेगा कि सर आपको फिल्म शूट करनी है, या सर अब आपको थिएटर करना है। वो ही नोज, वो अपने आप अपना क्राफ्ट चेंज कर लेंगे। तो क्योंकि एक्टिंग इज एक्टिंग, एक्टिंग कोई थिएटर एक्टिंग, कैमरा एक्टिंग नहीं है। और मुझे लगता है कि जो वक्तव्य आया है, मुझे बहुत मजा आया सुनकर, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी मजा आया होगा। ये बहुत, क्योंकि जो लोग इंडर, और ये जो न्यू वेव सिनेमा है जिसको, जो अब शायद हाईलाइट हुआ है, इसको शुरू करने वालों में मैं कहूँगा, उसमें शुरू करने वालों में पवन भाई जैसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। और मुझे लगता है उनको सुनना, समर्थ के, या जो समय समर्थ के स्टूडेंट नहीं है जो इस वक्तव्य में जुड़े हैं, उन सबके लिए बहुत खूबसूरत रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। और मुझे लगता है पवन भाई को भी मजा आया होगा इस अरे बहुत मजा डिजिटल आया। प्लेटफॉर्म में। और आता हूँ दिल्ली तो मैं मिलूंगा आप लोगों से, इस बार आऊंगा मैं जी समझ थिएटर। तो जितने जी लोग आप जी लोग जी आए मयूर विहार फेज 3 में मिलते हैं, जी पक्का जी, मिलेंगे। हमें हमें इंतजार रहेगा पवन भाई। नाउ एक टेक्निकल टीम से मैं आपको मिलाना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी जो कार्यक्रम होता है, भले ही हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, एक टीम लगातार काम कर रही होती है। तो मुझे लगता है कि उस टीम से आपको मिलाना सख्त जरूरी है। तो मैं मंच, इस डिजिटल मंच पे बुलाना चाहूंगा अंकित को। अंकित कुमार, एक बार जोरदार तालियां हो सकती है डिजिटल अंकित तो शुरू से ताली लगा अंकित हुआ के लिए, है। हाय है अंकित। ना, है ना। कुछ पर्दे के पीछे के और क्या किरदार हैं जिनको मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा इस डिजिटल मंच पर। ध्रुवी, एक बार जोरदार तालियां ध्रुवी के लिए। हाँ, अरुण कुमार, एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा अरुण के लिए भी।
स्पीति भी है इसमें शामिल, पर कुछ किसी कारणवश आज स्पीति आ नहीं पाई है, तो स्पीति के लिए हम यहीं से तालियां बजाते हैं, और हम स्पीति जब ये वीडियो देखे तो समझ जाए कि हमने उसके लिए खूब सारी तालियां बजाई। बाकी मैं अपने वक्तव्य को शांत कर कर अब चाहूंगा कि अंकित इसको खत्म किया जाए, तो ओवर टू यू अंकित। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। जैसे कि सर ने भी कहा और सर के वक्तव्य के दौरान भी काफ़ी सारे मैसेजेस आए, तो मैं एक बार फिर से पवन सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, आप हमारे साथ जुड़े और अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज हमारे साथ शेयर किया। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर मुझे जॉइनिंग। बहुत अच्छा लगा, सेम ईयर, बहुत अच्छा लगा मतलब आप लोगों से बात करके, इतना पता के लगा कि कुछ चलो कुछ जीवन में कुछ कर रहे हैं हम लोग पैंडेमिक में। सर आपको नहीं मालूम, आप कमाल कर रहे हैं। मूविंग ऑन, tomorrow we'll have अशोक लाल जी, a playwright, and I hope जैसे हमारे ये 2 दिन गए हैं, हमारा तीसरा दिन भी बहुत अमेजिंग होगा। See you tomorrow. Have a great evening. Good night. Bye bye. बाय बाय।